हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we are discussion most important topic here, shock therapy. Shock therapy is here the end of bipolarity. A political science CBSE chapter 2A, class 12. This is the most important topic today has doing here. The first of all here, the mean of shock therapy, drawback and sequence. This point is the most important and today discuss in this point. The first of all here, mean of shock therapy. There is shock therapy is important here. Shock therapy was a painful process of transition from to the authoritarian socialist system to be a democratic capitalist system. And this transformation system was influenced by the World Bank and the IMF in the Russia and Central Asia, East Europe, through its various intensity and speed amongst their former second world and country, but it is a direction and future were quite similar. The next year mean the dissolution of the USSR was correlated with the downfall of communism in the countries which were a member of socialist bloc, and these post-Soviet countries underwent a process of transition from a authoritarian socialist system to be a democratic capitalist system. The modern transition come to the back shock therapy, and it was facilitated by the World Bank and IMF, the Bretton Woods institution. There is a next point here. The next year drawback. This was not a best way to make a transition from the communism to capitalism due to the following drawback here. The drawback is the most important point here. First of all, drawback here, Russia, their large state and control to industrial complex lost about 90% of the industries through the sales to be private, individual and companies. This is the first point here. And the next here, it's a create the largest garage sale in history. The largest garage sale in the history, which leads to virtual disappearance of entire industry for the restricting and was carried out by the market force in place of government awarded policy. This is the most important policy here, and hence industry were under value and sold at a throwaway prices. And the next year, it is a systematically destroy old system of social welfare here. The next point here, the value of rubles, the Russian currency, and decline dramatically due to the high rate of inflation and real GDP of Russia, and also decline between to the 1989 to 1999. This is the most important period time here. The withdrawal of government subsides, pushing a large section of the society into the poverty, and it is emerged a mafia to start control many economical activity here. That's an important point here. Society into the poverty, and it is emerged mafia to start control many economical activities here. And here privatizations lead to be new disparities, which is a divided Russia between the rich and poor people, creating economic inequality. Economical equality. And shock therapy brought around to be a economics and disaster upon their people of entire region. This is the most important drawback here. The next point here, consequence of shock therapy. There's important topics here. Consequence of shock therapy here. Shock therapy is provided to be a real shock for the Soviet economics. The shock therapy proved
to be a real shock for the Soviet economic. It is about to run to be a communist economics and the people of the region. It will lead to their collapse of the state-controlled industry units and high-scale privatizations of the government and enterprises and subsequent outtakings of the state-owned industry, which were called the largest grand scale in the world history. The value of Russia currency ruble declined. The value of Russian currency ruble declined democratically with their soaring rate of inflation pushing people into the poverty. There is an influence of pushing people into poverty. The next point here, the old system of social welfare was pushed to be assessed with their government and withdrawing subsidies here. The next point here, it is a widened their gap between rich and poor. It is a further reinforced their economical divide. आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है क्लास जो है 12वीं के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रहेगा और इसमें चैप्टर जो है हम दूसरा करेंगे जिसके ए पार्ट में दो ध्रुवियों का अंत। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, दो ध्रुवियों का अंत, जिसमें हम विस्तार पूर्वक सभी क्वेश्चनों पर जो है प्रकाश डालेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है शॉक थेरेपी। देखिए आज जो हम करेंगे शॉक थेरेपी के हर एक बात पे जो है डिस्कशन करेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, इसका नुकसान क्या है और इसका परिणाम क्या है, तो सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक जानना आपके लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और ये एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एग्ज़ाम में सदैव शॉक थेरेपी की क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है, चाहे शॉक थेरेपी क्या है ये आ जाए, चाहे इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या है, या हो सकता है कि इसका नुकसान क्या हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। तो क्वेश्चन कई हैं, लेकिन अगर आप इन बातों को ध्यान से समझते हो तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बात सबसे प्रथम यही आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो शॉक थेरेपी एक जो है सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। आपको पता ही होगा कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो यहाँ पर दो शक्ति उभर के सामने आई थी, एक जो था अमेरिका और एक जो था यूएसएसआर। अमेरिका का जो नीति था पूंजीवादी था और आपको पता है सोवियत संघ का जो नीति था वो साम्यवादी था, यानी समाजवादी नीतियों के अंतर्गत चला। अब कोई आपको ज़बरदस्ती जो है आपको सत्तावादी यानी समाजवादी छोड़वा के पूंजीवादी का जो है अपनाने के लिए प्रयास करवाए तो ये दर्दनाक स्थिति होता है, क्योंकि कोई अपना जो है वास्तविक स्थिति नहीं खोता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है पूंजीवादियों ने जो है समाजवादियों को बहुत ही प्रताड़ना दिया और बाद में उन्होंने ये कहा कि आप इस रूल रेगुलेशन को अपना लीजिए। तो इसी को जो होते हैं शॉक दे के थेरेपी देना, यानी आपको झटका देते हैं और उसके बाद आप पे मलहम लगाते हैं, तो इसी को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। अगर हम पॉलिटिकल शब्दों में देखें तो यह परिवर्तन प्रणाली रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में विश्व बैंक और IMF के प्रभावित भी थी। हालांकि पूर्वी द्वितीय विश्व युद्ध के दोनों में इसकी तीव्रता और गति भिन्न भिन्न थी, लेकिन इसकी दिशा और विशेषता काफ़ी सामान्य थी। तो जनरल सी बात आप समझ गए होंगे शॉक थेरेपी का मतलब कि शॉक थेरेपी एक सत्तावादी यानी सत्ता के लिए की गई समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। यानी संक्रमण का मतलब होता है कि इस खेमा से उस खेमा में जाना। अगर हम पहले उस खेमा में चले जाते तो शीत युद्ध की घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन बाद में अगर जाना एक शॉक थेरेपी से कम नहीं था, तो इसका जो है शॉक थेरेपी दिया गया। अब देखा जाए तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, चलिए देखें शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है शॉक थेरेपी का मतलब, यानी क्या अर्थ होता है, क्या मीन है इसका। कहते हैं USSR का विघटन उन देशों में साम्यवाद के पतन से संबंधित था, क्योंकि आपको पता है कि USSR जो है विघटन हो गया था और कई राज्यों में जो है विघटित हो गए, टूट गया था और ये बर्लिन दीवार के कारण हुआ कि बर्लिन दीवार गिरा दी गई और बहुत से नेता जो थे सत्तावादी हो गए और उन्होंने जो है USSR से अपने आप को अलग थलग कर लिया था।
कहते समतावाद के पतन से संबंधित है जो समाजवादी गुट के सदस्य थे। यानी देखा जाए तो यूएसएसआर में जितने भी व्यक्ति थे वो समाजवादी गुट के सदस्य थे। लेकिन सोवियत के बाद के ये देश एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को लोकतंत्री पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया से गुजरे। यानी जो है सत्तावादी, यानी जो सत्ता में बने थे, बात वही है। कहते हैं शॉक थेरेपी क्या होती है और इसका मतलब क्या है, बात एक ही होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, तो आपको थोड़ा सा आंसर भी उसी तरह से देना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जनरल सी बात है, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो साम्यवाद का पतन से संबंधित हो गया, और जनरल सी बात है यहाँ पर सोवियत संघ के बाद ये देश जो थे सत्तावादी हो गए। यानी सब के सब जो है अपने सत्ता पे आसीन हो गए, और लोकतंत्र जो है उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमित हो गए, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पकड़ लिए। संक्रमण के मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। यानी जो लोग पहले समाजवादी में थे और वो पूंजीवादी में कन्वर्ट हो गए, ये जो संक्रमण हुआ इसी को ही हम शॉक थेरेपी कहे जाने लग गया। और इन सब कारणों के पीछे क्या कारण था, इसे विश्व बैंक और IMF जो है ब्रिटेन विभिन्न संस्थाओं द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था। यानी देखा जाए तो सबसे बड़ा शॉक थेरेपी जो दिया गया था विश्व बैंक के द्वारा दिया गया था, और IMF और ब्रिटेन वुड्स ने भी शॉक थेरेपी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि इन्होंने जो है सभी सत्तावादी लोगों को विवश कर दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए। तो वही बात है कि पहले आप जो थे हमें प्रताड़ना दिए, हमें तकलीफ़ दिया, और बाद में आपने हमारे घाव पे मलहम लगाया। तो इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। पहले ही जो है सत्तावादी जो थे, अगर वो पहले ही पूंजीवादी अपना लेते तो आपको पता है जो 1945 से लेके 1991 में जो शीत युद्ध की दौर चली और युद्ध की स्थिति बनी रही, शायद ये घटना नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी ये घटना हुई, और बाद में जो सत्तावादी लोग थे वो पूंजीवादी से संक्रमित हो गए। तो जब पहले ही आपको इसी में जाना था तो इतने दौर से जो है पूरे विश्व को जो है क्यों जो है कोल्ड वॉर के आड़ में फंसाया। तो इसी को ही शॉक थेरेपी कहा गया। अब चलिए हम देखें कि शॉक थेरेपी की कमियां क्या कारण थे और इसकी क्या बैकडोर था। कहते हैं आगे पॉइंट है निम्नलिखित कमियों के कारण समाजवाद ने पूंजीवाद से परिवर्तन करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। यानी इसको ड्रॉबैक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कमियां क्या क्या हुई। कहते हैं रूस बड़े राज्य नियंत्रित औद्योगिक परिसर में निजी व्यक्तियों और कंपनियों को बिक्री के कारण अपने लगभग 90% उद्योगों को खो दिया, क्योंकि जनरल सी बात है इन्होंने पूंजीवादी को अपना लिया, और जिसके कारण रूस के बड़े राज्य नियंत्रित औद्योगिक परिसर में निजी व्यक्तियों और कंपनियों को बिक्री के कारण वहाँ पर देखा जाए तो लगभग जो है 90% उद्योगों को जो है खोना पड़ गया, और इसने इतिहास की सबसे बड़ी गैराज बिक्री कहा। यानी देखा जाए तो इतिहास में सबसे बड़ी ये बिक्री हुई, जिसके कारण संपूर्ण उद्योग लगभग गायब हो गई, क्योंकि पुनर्गठन सरकारी स्वामित्व वाली नीतियों के स्थान पर बाजार ताकतों द्वारा ले लिया गया। यानी जो सरकारी नियंत्रण में थे सारे बाजार, अब उसको जो है बाजार ताकतों ने ले लिया। तो ये बहुत बड़ी कमियां हुई और बहुत बड़ी इसके जो है देखा जाए हुआ। इस उद्योग का कम मूल्यांकन किया गया, उन्हें आने पौने दाम पर बेच दिया गया। जर्नल सी बात है जब उन्होंने पूंजीवादी अपनाने के लिए कहा तो उद्योगों को जो है कौड़ी के भावों में बेच दिया गया, क्योंकि जर्नल सी बात है जब यहाँ पर सरकार के नियंत्रण खत्म हो गया तो देखा जाए तो सभी आम इंसानों ने ये जो है बाज़ारों को जो है आने पौने कौड़ियों के दामों में जो है बड़े बड़े उद्योगों को बेच दिया, जिसके कारण जो है यूएसएसआर को बहुत बड़ा धक्का लगा, और ये उनके लिए शॉक थेरेपी से कम नहीं थी। इसने सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। यानी सामाजिक कल्याण जो समाजवादी विचारधारा थी, जो पुराने रीति रिवाज थे, उसको जो उन्होंने पूरी तरह से ही नष्ट कर दिया, क्योंकि अब साम्यवादी के जगह जो है पूंजीवादी ने अपना घर कर लिया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया, जिसके वजह से देश में बहुत नुकसान हुआ। कहते हैं रूस के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण इनका स्थापित हो गया। अगला पॉइंट हमारे समक्ष यही आया है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण, यानी मुद्रास्फीति यानी जो करेंसी थी
उसकी दर उच्च के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में जो है नाटकीय रूप में गिरावट आ गई। यानी देखा जाए जो रूबल थी वो बहुत ही कम हो गई, उसका वैल्यू जो था पूरे विश्व में बहुत ही कम कर दिया गया। अब जनरल सी बात है, किसी की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत रहती है जब उसके जो है करेंसी मजबूत होती है। तो देखा जाए तो जो रूबल चल रहा था उस क्षेत्र में, वहाँ पर जो है नाटकीय गिरावट आ गई और 1989 से लेकर 99 के बीच रूस की वास्तविक जीडीपी में भी गिरावट आ गई। तो देखा जाए तो रूस को जो है यहाँ पर बिल्कुल ही तबाह कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी जीडीपी भी बहुत निचले स्तर पर आ गई। सरकारी सब्सिडी की वापसी ने समाज के बड़े हिस्से को गरीबी को धकेल दिया। यानी देखा जाए तो सरकार ने सब्सिडी आपसी जो आपस ले लिया उसने सब्सिडी वाली कहानी, तो इससे जो है गरीब लोगों को जो है और गरीब बना दिया। ठीक है, ये सारे के सारे कमियां थी और यह कई आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए माफिया के रूप में उभरा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है आम व्यक्तियों को जो सारा नियंत्रित जो है माफिया लोग करने लगे, यानी बुरे लोगों के हाथों में चला गया। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। निजीकरण ने कई असमानताओं को जो है जन्म दिया, क्योंकि निजीकरण सरकार जो सार्वजनिक थी अब निजीकरण कर दिया गया, और निजीकरण करने के कारण जो था अमेरिका, देखा जाए बहुत से ऐसे देश थे जो इन देशों को जो है व्यापारों को अपने अधीन कर लिए, क्योंकि सारे के सारे जो है सेक्टर जो है निजीकरण के अंतर्गत चली गई। यानी जितने भी उद्योग थे सब निजीकरण में आ गई और असमानताओं को जन्म दे दिया, जिसे रूस और अमीर कहते, रूस को और अमीर और गरीब लोगों के बीच में विभाजित कर आर्थिक असमानता पैदा कर दी। यानी अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया, जिसके कारण बहुत सारे असमानता पैदा हो गई। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी यहाँ पर शॉक थेरेपी के अंतर्गत। इसलिए शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया और पूरे क्षेत्र के लोगों पर जो है आपदा ला दी। यानी शॉक थेरेपी के कारण पूरा जो है रूस तहस नहस हो गई, क्योंकि सरकार भी तो यही चाह रही थी यूएसए सरकार ये चाहती थी कि रूस जो है ख़त्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ जब इन्होंने शॉक थेरेपी की नीति को अनुसरण किया, और इसके कारण जो है पूरा यूएसएसआर जो है विघटित हो गई। अगर आगे हम पॉइंट पे बात करें तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, परिणाम क्या थे। देखा जाए तो शॉक थेरेपी सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए एक वास्तविक झटका साबित हुआ, क्योंकि शॉक थेरेपी जो थी सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक झटका यानी बहुत बड़ा झटका थी। इससे साम्यवादी अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के लोगों को बर्बाद कर दिया। जो लोग साम्यवादी विचारधारा थे और जो साम्यवादी के अंतर्गत चल रहे थे, उनके अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्रों को लोगों को जो है बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया, और इसके कारण राज्य नियंत्रित औद्योगिक इकाई ध्वस्त हो गई। राज्य के जितने भी औद्योगिक इकाई थी सब तहस नहस ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई, और सरकारी उद्यमों को बड़े पैमानों पर निजीकरण हुआ। यानी जितने भी सरकारी उद्यम थे, सरकारी उद्योग थे, सबको जो है निजीकरण कर दिया गया। जैसे भारत में भी देख सकते हो कि अभी इसके समय जो है निजीकरण की जो है नीतियों को अपनाई जा रही है। सारे रेलवे हो, सभी हो, सरकार जो है निजीकरण कर रही है, बड़े बड़े कंपनियों को हाथों में सौंप रही है। तो कुछ कंडीशन उसी प्रकार से दिख रही है भारत में भी। और इसके बाद राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को नीलामी हो गई। जो राज्य के स्वामित्व थे या राज्य के अधीन थे वो सारे उद्योगों को जो है इन्होंने नीलाम कर दिया। जैसे विश्व इतिहास में सबसे बड़ा गैराज बिक्री कहा गया। यानी देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी जो बिक्री हुई वो यूएसएसआर में ही हुई, जिसको शॉक थेरेपी के परिणामों के अंतर्गत देखा जा सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मृदा समृद्धि बढ़ती दर के कारण लोग गरीबी में धकेलने के कारण रूसी जो है मुद्रा रूबल में जो है बहुत काफ़ी गिरावट आई। ये भी इसके परिणाम थे। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, शब्द जो है बदले हुए हैं लेकिन है वही, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यानी देखा जाए ड्रॉबैक हो या परिणाम हो, कहते काफ़ी हद तक सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें समझना ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते जो भी आपको शब्द आसान लगता है उन शब्दों को ही आप ग्रहण करें और उसी बात को अनुसरण करें और समझें और नोट करें, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ यहाँ सिंपलिसिटी की है कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, जो आसान वर्ड है उसको लिखिए। इसलिए मैंने इसको 2 भागों में जो है बांट दिया है, क्योंकि मुद्रा समृद्धि बढ़ती दर के कारण लोगों को गरीबी में धकेलने के कारण
रूसी जो है मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आ गई, यानी काफ़ी रूबल का जो है कीमत उस समय घट गई, जिसके कारण जो है काफ़ी बड़ा जो है शॉक लगा। सरकार द्वारा सब्सिडी वापस लेने के समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, यानी सरकार जो अब सब्सिडी के लिए वापस लेने से जो है पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी वो बिल्कुल ही तहस नहस हो गई, क्योंकि ये भी उस सरकार की नीति थी। और इसमें अंतिम पॉइंट यही है कि इसने अमीर और गरीब के बीच जो है खाई का चौड़ा कर दिया, अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गया, और इनमें आर्थिक विभाजन को और मजबूत किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसे भी हो, अगर बड़े मार्क्स में यू है तो इससे अधिक पॉइंट आपको मांग ही नहीं सकता। ठीक है, दोनों पॉइंट एक जैसे ही है, इसलिए आप दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट जो आपको सरल लगता है उसको नोट करके आप याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, डिफाइन द बाइपोलैरिटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। बाइपोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर in which the majority of global economics, military and culture influence is held between two states. There is a most important here. अगर हम बात यहाँ पर करें द्विध्रुवता की परिभाषा की, तो कहते हैं एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और जानना भी जरूरी है। द्विध्रुवता को विश्व व्यवस्था की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी बाइपोलैरिटी को जो है द्विध्रुवता विश्व की व्यवस्थाओं की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है कि एक प्रणाली है जिसमें अधिकांश वैश्विक आर्थिक, सैन्य और संस्कृति प्रभाव दो राज्यों के बीच में होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि दो ध्रुवता का मतलब होता है दोस्तों एक प्रणाली है जिसमें दो देशों के बीच, जिसमें अधिकांश वैश्विक दो देशों के बीच आर्थिक, सैन्य, संस्कृति प्रभाव दो राज्यों के बीच में हो। इसे दो ध्रुवता के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। यानी यही बात है कि इन्फ्लुएंस बिटवीन द टू स्टेट देयर इज अ मेजॉरिटी इज ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चर इन्फ्लुएंस हियर। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह जाता है एग्जाम व्यू से कि दो ध्रुवता से आप क्या समझते हो, यानी बाइपोलैरिटी क्या होती है। तो बाइपोलैरिटी एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो राज्यों के बीच आर्थिक, सैन्य और संस्कृति प्रभावों का जो है आदान प्रदान होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, समझ में भी आपको आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द नेक्स्ट 3 questions here. Explain any 2 reasons for the degradation of the USSR. This is the most important question here. Explain any 2 reasons for the degradation of the USSR. This is the most important for the exam view here. A factor responsible for the degradation of the Soviet Union here. A 4 point is the most important here. You know that on your screen there is a 4 point here. First of all, factor here responsible the degradation of the Soviet Union. The most important factor for the fall of the Soviet Union was a lack of proper leadership. You know that there's a most important answer here. The most important factor for the fall of the Soviet Union was a lack of proper leadership. And second here, there was a no clear-cut line between two party and government, as where was one political party which was a wielding power. This is also important point here. There was a no clear cut line between the party and government. No clear cut line to the party and government, as there was a political party which was the wielding of power. And the next point here, Mikhail Gorbachev, a policy of perestroika and glasnost is provided to the districts for their economical health of the USSR. This is an important point here. Mikhail Gorbachev is a policy. Gorbachev is a policy of perestroika and glasnost is provided with the districts for the economical wealth of the USSR.
And the next point here is also important here. Anti-communist forces of the Soviet Union had the support of USA and Western European country. This is most important here. Anti-communist force of Soviet Union had the support of the US and Western European country. And Gorbachev, due to the liberal policy, did not try to uproot these forces. This is a note. Try to uproot these forces here. And no effort was ever made to be created as a socialist human beings and socialist culture. This is the most important question on your screen. There is reason for the degradation of the USSR. Here ask the two reason, but here discuss of the 5 important points here. यदि हम यहाँ पर बात करें यूएसएसआर के विघटन के कोई 2 कारण बताएं। देखिए यहाँ पर तो हमसे 2 कारण पूछा गया है, लेकिन त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 2 के जगह 5 नंबर के क्वेश्चन पे ही अपना विश्वास रखता है, क्योंकि 5 पॉइंट तो बच्चों को पता होना ही चाहिए। यहाँ पर बेसिकली 2 पॉइंट पूछ ले आपसे, 3 पॉइंट पूछ ले, 4 पॉइंट पूछ ले, इसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ अर्थ ये है कि आपको कम से कम 5-6 पॉइंट जो है दिमाग में होना ही चाहिए। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि यूएसएसआर के विघटन के क्या कारण हो सकते हैं, जबकि यूएसएसआर जो है एक खेमा थी जो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए बहुत ही सक्षम थी, और अमेरिका का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि यूएसएसआर पर जो है अटैक कर सके, न यूएसएसआर का हिम्मत हुआ कि अमेरिका पर अटैक कर दे। तो इसका मतलब है कि दोनों ही देश बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन फिर भी यूएसएसआर का विघटन होना किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ, तो इस पे हम विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे। अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए तो सोवियत संघ विघटन के लिए कुछ कारण थे। पहला कारण तो यही दर्शाया गया है कि सोवियत संघ के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उचित नेतृत्व का अभाव था। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी देश हो, कोई भी पार्टी हो, किसी चीज़ का विघटन होता है तो वो विघटन इन्हीं कारणों से होता है कि उसमें कोई अच्छा नेतृत्व करने वाले लोग नहीं होते। अगर घर ही की बात कर ले हम, अगर घर में अगर माता पिता बच्चों पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो घर भी जो है विघटन हो जाता है। तो उसी तरह देश की बात आती है। तो सोवियत संघ के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उचित नेतृत्व का अभाव था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सबको लेके चल सके और सबका विकास भी करने योग्य रहे। पार्टी और सरकार के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं थी, न पार्टी के पास कोई रूपरेखा थी, न सरकार के बीच था। सब अपने ही रास्तों पे चल रहे थे। कहते हैं कोई पार्टी तभी आगे सफल होता है जब प्रत्येक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर पार्टी का कुछ और उद्देश्य था और सरकार का कुछ और उद्देश्य था। तो इसका मतलब ये हुआ सरकार जो बनाई गई तो सरकार का अपना एक उद्देश्य था, और जिस सरकार जिस पार्टी से बनी उस पार्टी का अपना एक उद्देश्य था। तो इन दोनों के बीच में स्पष्ट रेखा नहीं थी, क्योंकि एक ही राजनीतिक दल का सत्ता संभाल रहा था। क्योंकि देखिए, जिस पार्टी की सरकार थी उसी पार्टी की सरकार भी बनी थी। इसमें मिखाइल गोर्बाचेव की पार्टी थी और गोर्बाचेव जो है मेन प्रेसिडेंट बने, लेकिन कहते हैं पार्टी की अपनी बात थी और मिखाइल गोर्बाचेव एक अलग ही कुछ करना चाहते थे। यानी देखा जाए तो इसमें स्पष्टता की बहुत कमी थी, जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन होना स्वाभाविक बात था। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो मिखाइल गोर्बाचेव की जो है एक अपनी नीति थी। यानी मिखाइल गोर्बाचेव जो था पेरेस्ट्रोइका और ग्लासnost की नीतियों पर विश्वास रखता था। ये एक ऐसा नीति था जिसमें लोगों को जो है आर्थिक स्वास्थ्य से बचाना था, लेकिन पार्टी इस बात को नहीं मान रही थी। देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे बहुत ही दूरदर्शक थे और वो समझते थे कि देश की कैसी भलाई होना चाहिए, लेकिन ये भलाई उनके पार्टी को ही रास नहीं आई।
और उनकी नीति यूएसआर के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी साबित हुई। जो इन्होंने नीति बनाई पेरेस्ट्रोइका और ग्लासnost की, तो ये उनके अच्छे नीति थी, लेकिन यही नीति आर्थिक स्वास्थ्य की जो नीति थी, कहते हैं यूएसआर के बिगड़ने के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति अच्छा करना चाहते हैं तो उसको किए करने नहीं दिया जाता है, और कुछ गलत करता है तो उसको शाबाशी दी जाती है। मिखाइल गोर्बाचोव अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी उनका साथ ही नहीं दे रहे थे, जबकि उसी पार्टी से वो निकले थे। उनका विचारधारा कुछ और था, पार्टी का विचारधारा कुछ और होता है। दोस्तों, ये हर एक देश में अभी के समय में भी होता है। कोई बड़े मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी पद पे जाते हैं, वो अच्छा से अच्छा करने में सक्षम इसलिए नहीं होते हैं कि उनको डर होता है कि कुछ अच्छा हम करेंगे तो पार्टी जो है हमारा साथ छोड़ देगी, तो इसलिए वो पार्टी जैसा कहते हैं वैसा ही करती हैं। और ये बहुत दुखदायी परिस्थिति होती है कि सरकार का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जन कल्याण की बातें करे। पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इलेक्शन में हम जीत हासिल कैसे करें। तो इसलिए जो है बीच रास्तों में मिखाइल गोर्बाचोव को जो उसकी पार्टियों ने छोड़ दिया। जो उनकी नीतियां थी वो नीतियां भी फेल हुई, और ये यूएसएसआर के विघटन करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है कारण बन गया। अगले पॉइंट पर अगर हम प्रकाश डालें तो देखिए, सोवियत संघ के कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों को अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त था। और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ यही हुआ कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट विरोधी पार्टी थी, उसको अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का साथ था। जैसे मान लीजिए भारत में भी कई तरह के पार्टी है। एक पार्टी भारत में कार्यरत है और उससे सरकार है, और दूसरी पार्टी है उसको जो है अमेरिका से सहयोग मिल रहा है, पाकिस्तान से सहयोग मिल रहा है। तो जैसा अमेरिका कहेगा, जैसा पाकिस्तान करेगा, वैसा ही वो पार्टी करने की कोशिश करेगी। तो जनरल सी बात है, भारत में सांप्रदायिक दंगा फसाद होना स्वाभाविक बन जाता है। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ। कहते अपने ही लोग अपने ही देश को बर्बाद कर दिए, क्योंकि ये लोग जो थे अमेरिका के साथ मिल गए और पश्चिमी देशों के समर्थन प्राप्त कर लिए, और अपने देश की भलाई इन्होंने नहीं सोचा। वही बात आ गई ना जो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज यहाँ पर आए और उनको पता था कि यहाँ राजवाड़ों का शासन होती है, और उनको ये भी बात पता था कि राजवाड़े में ऐसे बहुत से मंत्री हैं जो राज्य हासिल करने के फिराक में हैं। तो इन्होंने इसी बात पे जो है अटैक किया कि जो व्यक्ति राज्य हड़पने के फिराक में है उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया राज्य के बारे में। और फिर क्या हुआ उसका तो आपको पता ही है कि 2.5 साल की जो है हमें जंजीर मिल गई, ठीक है, हम पराधीन हो गए। तो ऐसा ही यूएसआर के विघटन में भी हुआ कि जो विरोधी पार्टी थे उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त कर लिया। और समर्थन प्राप्त करने का अर्थ होता है कि वो अपने देश के बारे में हर एक घटना उनको बेखूबी बताए। और ऐसा ही हुआ कि सारी भेद जो है अमेरिका और जो यूरोपीय देशों को उन्होंने बता दिया, और उन्होंने जो है इसका फ़ायदा उठाया, और उन्होंने जो है विघटन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गोर्बाचोव ने अपनी उदार नीतियों के कारण इन ताकतों को उखाड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि गोर्बाचोव के जो थे उदार नीतियाँ थी, और उदार नीतियों से इसको उखाड़ फेंकना संभव नहीं था। क्योंकि इन पार्टियों को अगर जो है मिखाइल गोर्बाचोव प्रयास करते उखाड़ फेंकने की, तो शायद यूएसएसआर का विघटन नहीं होता। लेकिन देखा जाए तो इन पार्टियों ने जो है 2 पावरफुल देश अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों से जो समर्थन प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण जो है गोर्बाचोव ने कुछ नहीं कर सके। जनरल सी बात है, ये काफ़ी पावरफुल थे, और अपने ही देश में जो है अपने ही पार्टियों का जो इन्होंने समर्थन खो दिया। तो जनरल सी बात है, यूएसएसआर का विघटन तो होगा ही होगा। उसके पश्चात है समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया। कहते हैं यूएसएसआर के विघटन का सबसे बड़ा कारण ये भी बना कि समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के लिए भी कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि यूएसएसआर का जो है मेन मोटिव जो था साम्यवादी था, यानी सोशलिस्ट था, और अमेरिका का क्या था विचारधारा, कैपिटलिस्ट
यानी पूंजीवादी। अमेरिका तो अपनी विचारधाराओं पर चल रहा था, लेकिन यूएसएसआर अपनी विचारधाराओं पर नहीं चल रहा था, जिसके कारण इसका विघटन होना स्वाभाविक था, क्योंकि ना तो इनके पार्टियों ने समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के कोई प्रयास ही नहीं किया अपने देश में, जिस कारण जो है यूएसएसआर का विघटन होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन अराइव हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर is the fourth here. Describe any 4 consequences of degradation of the Soviet Union. This is the most important for the exam view here. Tripan Study Center here is take a most important question for the exam view. And the fourth question is the most important for the exam view here. Describe any 4 consequences of degradation of Soviet Union. This is the most important. You know that consequence is the most important. The consequence of the integrations of Soviet Union were the first point here. This is the disintegration of Soviet Union meet the end of the Cold War. There is a Soviet Union meet to the end of Cold War because the Cold War was the culmination of rivalries between the USA and USSR, and thus Cold War is a confrontation were put to an end. This is the most important consequence first here. There is the end of Cold War. Reason being here, the Cold War was the culminations of rivalries between the USA, USSR and USSR. This is an important first point here. And the second here, the dissolutions of Soviet Union lead to be dramatic change and upheavals in their power of relation, which had to implication for the world politics. I repeat again this point here. The dissolution of Soviet Union lead to a dramatic change and upheaval in the powers of relation, which had an implication for the world politics. The disintegration left open to the world space to be dominated by the sole superpower is called their USA are to have the dominance of the cerebral power. The consequence is the most important here. The USA is a superpower. The USA here superpower. The world is to be dominated by their solo superpower for USA. This is the most important consequence of disintegration of Soviet Union here. And the next point here, the Bretton Woods institution like the World Bank and International Monetary Fund become active and players in the wake of developmental needs of second world country as they were borrowing money from the World Bank and IMF. You know that this is the most important consequence here. The Bretton Woods institution like the World Bank and the International Monetary Fund become active and player in the make of development need of second world country as they are borrowing money from the World Bank and IMF. This is the most important point here. And the next year, the world say the emergency of many new countries with their own independent aspiration. This is the most important consequence here. The emergence of many new countries. There are USSR here, degradation and emergence of many new countries here. And the next year, the Baltic state, namely Estonia, Lithuania and Latvia is joined to the European Union and subsequently become a member of NATO. This point is also important.
the Baltic state, namely to the Estonia, Lithuania, and the Latvia, to join the European Union and subsequently become a member of NATO. There is a member of NATO. And sixth point here, undoubtedly there is a significant consequence of measuring away for the USSR was there inaugurations of period of US hegemony. Inauguration of period of US hegemony in their capitalism was pronounced as the winner because socialism has been to dead. There, the socialism has a dead and USA here the hegemony and capitalism is winner. So capitalism is a winner and socialism is a loser. This is the most important consequence of integrations of USSR here. This is the most important question for the exam view here. यदि बात हम आगे अगला क्वेश्चन के करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोवियत संगठन के विघटन के परिणामों का वर्णन करें। तो यहाँ पर 4 परिणाम क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, लेकिन हम 6 पॉइंट पे करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी हो जा सकता है, 4 में भी, 5 में भी। तो जनरल सी बात है, आपको कम से कम 5-6 पॉइंट तो दिमाग में होना ही चाहिए, चाहे वो 2 कह दे, 3 कह दे, हमें इससे नहीं है, कोई क्वेश्चन करना है। और आपको पता है कि हम जितने क्वेश्चन इसमें हम करेंगे इस वीडियो में वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा और सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन आपको आता ही रहेगा। कहते हैं ये जो दूसरा चैप्टर का है उसके बाद हर एक चैप्टर का आपको आता ही रहेगा। तो इसलिए अच्छा है कि सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, नहीं तो शायद आप किसी भी वीडियो से अनभिज्ञ हो जाइएगा तो शायद वो क्वेश्चन आपको नहीं प्राप्त हो। और वो एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ही जो है वीडियो बनाता है जो एग्ज़ाम व्यू से आना है, और कहते हैं ये आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। सिर्फ आपके समक्ष जो होगा क्वेश्चन के रूप बदल जाते हैं, लेकिन आंसर वही रहता है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए आप क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर सोवियत संघ विघटन के परिणामों का हमने चर्चा करना है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले। विघटन तो हो गया और विघटन के कारणों का हमने ऊपर चर्चा किया है। अब यहाँ परिणामों के हम करेंगे कि परिणाम क्या निकला, जब विघटन हुई तो इसके क्या परिणाम आए। तो चलिए हम परिणामों पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करें। सबसे पहली बात है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे। सोवियत संघ के विघटन का मतलब था शीत युद्ध का अंत था, क्योंकि आपको पता ही है कि यूएसए, अमेरिका और सोवियत संघ, उनमें से अगर कोई भी पीछे हट जाता तो जनरल सी बात है जो कोल्ड वॉर इतने सालों से चल रही थी, आपको पता ही होगा कोल्ड वॉर जो थी 1945 से स्टार्ट हुई और 1991 में जाकर ख़त्म हुई। ये बहुत लंबा दौर था। कहते हैं इस लंबी दौर में लोगों के मन में डर बना रहता था कि कोई भी सुपर पावर जो है एक दूसरे पर अटैक करेंगे और दूसरे देशों को जो है अपने अधीन कर लेंगे। इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट भी थी जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसको आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बात साफ करता है कि सोवियत संघ विघटन का मतलब था किसी एक शक्ति का पावरफुल बन जाना। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जर्नल सी बात है अमेरिका का प्रभुता बढ़ गया, क्योंकि शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच प्रतिद्वंद्विता की पराकाष्ठा थी और इस प्रकार शीत युद्ध के टकराव का अंत भी हो गया। क्योंकि आपको पता है, साधारण वर्ड में मैं बताऊं तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो ये प्रतिद्वंद्विता थी, यानी जो ये संघर्ष थी, वो पराकाष्ठा का था। पराकाष्ठा का मतलब होता है दोस्तों अपनी इज्जत सम्मान के लिए था, क्योंकि एक दूसरे पे अटैक करके अपनी इज्जत कोई गंवाना नहीं चाहते थे और पूरे विश्व में हंसी नहीं रुलाना चाहते थे। इसलिए शीत युद्ध का मतलब ही था कि युद्ध की स्थिति पैदा होना लेकिन युद्ध नहीं होना, यानी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, वो कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसी सिर्फ बातें होती हैं, बातों का युद्ध, मीडिया का युद्ध, एक दूसरे को नीचा दिखाने का युद्ध। तो जर्नल सी बात है जो प्रतिद्वंद्विता थी वो सोवियत संघ विघटन के कारण ख़त्म हो गई और सोवियत संघ विघटन के कारण में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान था। ये आपने जो है पढ़ा भी है विघटन के कारण क्या थे।
क्योंकि वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी को अपने अधीन कर लिया और उनके नेताओं को जो जैसा कहा वैसा ही उन्होंने किया। तो जो है सोवियत संघ का विघटन होना स्वाभाविक था और इसका परिणाम यही निकला कि अमेरिका जो था पावरफुल कंट्री बन गई और अमेरिका का जो है वर्चस्व आगे आ गया। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि सोवियत संघ के विघटन के सत्ता संबंधों में नाटकीय परिवर्तन हुआ, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन सत्ता में आपको पता नाटकीय परिवर्तन हुआ। क्योंकि जैसे भारत में भी आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान क्षेत्र की मांग किया, उसी तरह सोवियत संघ में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जो देश सोवियत संघ के सदस्य थे साथ मिले हुए थे, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ सब के सब जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपने आप को अलग थलग कर लिया। उथल पुथल हुई जिसका विश्व राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पर देखने को मिला। विघटन ने विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एकमात्र शक्ति की प्रभुता या कई शक्तियों की प्रभुता के लिए रास्ता खोल दिया। क्योंकि जनरल सी बात थी, उसमें दो ही शक्ति उभरी थी, सोवियत संघ और अमेरिका। आप जनरल सी बात है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका ही पावरफुल बन गई है और पर अमेरिका आज भी पावरफुल बना हुआ है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि इसमें जो है सोवियत संघ विघटन ने सत्ता के संबंध में नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला और इसका उथल पुथल पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। क्योंकि इस विघटन के कारण क्या हुआ, अमेरिका का प्रभुता और स्थापित हो गया और अमेरिका को जो है सभी देशों पर जो है प्रभुता रखने का जो है रास्ते बिल्कुल ही साफ कर दिए, क्योंकि अब उसको रोकने वाला सोवियत संघ तो विघटित हो चुकी थी। आगे अगर तीसरा पॉइंट की अगर हम ध्यान दें तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी ब्रिटेन वुडल संस्था दूसरे दुनिया के देशों को जो है विकासात्मक आवश्यकताओं के जो है मद्देनजर सक्रिय खिलाड़ी बन गई। क्योंकि विश्व बैंक और राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक तरह से जो है सक्रिय खिलाड़ी बन गया, क्योंकि जिसके पास विश्व बैंक था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, वो जनरल सी बात थी पावरफुल था और ये अमेरिका के पास ही रह गई, क्योंकि वह विश्व बैंक और एफआई से पैसा उधार ले रहे थे। अब देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अमेरिका के पास होने का मतलब था कि इनसे जो है पैसा उधार लेगा हर एक देश और हर देश जो है कर्जों में डूबेगा। और अमेरिका के लिए ब्रेटन वुडन संस्था की तरह काम किया। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है मद्देनजर जो है सक्रिय खिलाड़ी बन गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है यहाँ पर दायित्व जो है बदल ही गई, जो हमने शॉक थेरेपी में भी बात किया था। क्योंकि उन्होंने जो है यूएसएसआर को भी ऑफ़र किया था कि पहले तो उनको जो है ख़त्म कर दिया और बाद में जो है उनको सहूलियत देने लग गए। तो वही था कि शॉक थेरेपी, यानी उनको पहले आघात किया और फिर जाके उनको पे उपचार करने की कोशिश किया। और ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कारण ही हुआ। तो ये देखा जाए तो सोवियत संघ विघटन में चौतरफा यहाँ पर जो है वर्डिंग लगा, चौतरफा यहाँ कार्य प्रणाली हुई। उसके पश्चात जो अगला परिणाम आया वो था दुनिया ने अपनी स्वतंत्र आकांक्षाओं के साथ नई जो देशों का उदय भी देखा। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन हो जाने के कारण कई देश का उदय हुआ। क्योंकि पहले सोवियत संघ जो बनाई गई थी यूएसएसआर कई देशों से मिलके बनी थी और जैसे ही इसका नष्ट हुआ देखा जाए तो नए देशों का जो है उदय होना स्वाभाविक बना दिया। और अगली पॉइंट की हम बात करें, ब्लास्टिक राज्य अर्थात एस्टोनिया, लिथुआनिया और लतविया यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। ये सब जो थे यूरोपीय संघ में शामिल हो गए और बाद में नाटो के सदस्य भी बन गए। तो जनरल सी बात है, ऐसे देशों के लिए ये शुभ अवसर था, क्योंकि वो सोवियत संघ के विघटन का रास्ते ही देख रहे थे कि जैसे सोवियत संघ का विघटन होगा ये जो थे अपना अलग ही स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया और ये जो थे नाटो के सदस्य भी बन गए। उसके पश्चात देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी 6वां पॉइंट बताता है कि संदेह नहीं है कि सारे ख़त्म होने का महत्वपूर्ण परिणाम अमेरिका अध्यत्व की अवधि का जो है उद्घाटन था। यानी अमेरिका का जो है प्रभुता का स्थापना हुआ, इसमें पूंजीवादी का विजेता घोषित किया गया और साम्यवादी ख़त्म हो गया। तो इसमें यही इसका परिणाम निकला कि अमेरिका का जो है वर्चस्व बढ़ गया, यानी उसकी हजमनी जो है बढ़ गई और पूंजीवादी का विजय हुआ, यानी अमेरिका का विजय हुआ
और यूएसएसआर जो है ख़त्म हो गया, यानी साम्यवादी सदैव के लिए ख़त्म हो गया। तो ये परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण थे। देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण थे और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन अराइव हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ Gorbachev to be reform the Soviet system and effect of this reform on the USSR. This is the most important here. The role of Mikhail Gorbachev to reform the society system and the effect of this reform from the USSR. This is the most important question for the exam view here. Mikhail Gorbachev was the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985. There's a most important point here. Mikhail Gorbachev was the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985. He initiated reform to the Soviet system and tried to be normalized a relation with the best, and he also tried to the democratize and reform the Soviet Union. This is the most important here role there is Mikhail Gorbachev as a general secretary of Communist Party. There is aim is most important here. The reformer Soviet system was tried to be normalize relation with the West, and he also tried to democratize as a reform the Soviet Union. But first here, some of the reform initiated by the Gorbachev are. Reform is the most important point here. Let's see here Gorbachev as a reforms here. First of all here, he introduced the economics and political reform policy of perestroika, main restrictions, and glasnost is a openness. This is the most important reforms here. He introduced the economic and political reform policy here are two types. Restrictions and glasnost means openness. This is the most important here reform. And second here, he stopped the arms race with the US and by singing apart control over the nuclear weapon. This is the most important effort here. He stopped the arms race with the US by singing this apart from the control over the nuclear weapons. And the next year, he withdrew Soviet troops from the Afghanistan and Eastern Europe. This is the most important point here. He drove there is Soviet troops and from the Afghanistan and Eastern Europe here. The next topic here, the reforms initiated by the Gorbachev had a flowing effects on the USSR. This is the most important here. Reform, there is the most important for Gorbachev, but the reforms had an effect on the USSR. First of all here, common people become impatient to be wearing opponents and distracting of the system faster than this were scheduled in the policy of perestroika and glasnost. This is the most important here. There are common people become impatient to be wearing opponents and distracting of system and faster than this were scheduled or policy of perestroika and glasnost. And the next year, bureaucrats and the communist is a hardliner did not want to be adopt this policy. This is the most important fact here. Bureaucrats and the communists is a hardliner did not want to be adopt this policy, and they felt there is a power and luxury will be reduced. This is important point here. The effect here. And third point here, as a result, Gorbachev had to be a suffer and subsequently his resign and his comes took place in the 1991, and each with the Communist Party hardliners were on the one side and the stand is a supporter of restrictions on the other. This is the effect for the here reforms of the Gorbachev here. The Gorbachev has the resign
and is in 1991. And Communist parties, the hard-nots, were on one side, and the students is the supporter, dictating on the other side. This effect for the Gorbachev reform here. And the next point here, Gorbachev's reform policy is graded up to the nationalist feeling and the desire for the sovereignty within the various republics is including Russia and Baltic Republic. This is the most important here. Gorbachev reform policy graded up to the nationalist feeling and the desire for the sovereignty with their various republics and include Russia and Baltic republics. And people preferred their capitalist economic over to the centralized economies under which there are suffering. There's a most important last point here. The people preferred their capitalist economies over the centralized economy under which they were suffering. यदि अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो कि फिफ्थ है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहते हैं ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम व्यू से। क्वेश्चन को हम देखते हैं, सोवियत प्रणाली में सुधार के लिए गोर्बाचेव की भूमिका और यूएसएसआर पर इन सुधारों का प्रभाव क्या दिखा। यानी आपको पता ही है, हमने डिस्कस भी किया है कि सोवियत प्रणाली के जो है गोर्बाचेव ने बहुत सुधार करने की कोशिश किया, लेकिन आपको पता है कि सुधार करने से कुछ लोग जो होते हैं खुश नहीं होते हैं और कुछ लोगों के लिए खुशी की बात होती है, क्योंकि हमारे समाज में कई विचारधारा के लोग रहते हैं। कुछ सुधार होता है तो बहुत ही लोग खुश होते हैं। जैसे आपको पता है जब नोटबंदी हुई तो आम व्यक्ति जो थे बहुत खुश थे, लेकिन बड़े बड़े नेता खुश नहीं थे। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर ये बात आपको अगर समझ में होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि आम व्यक्ति खुश थे और बड़े बड़े लोग जो थे, जो मंत्री लोग सब थे, संसद के बाहर काली पट्टी बांध के बैठे पड़े थे। आखिर वो काली पट्टी क्यों बांध रखे थी? इसका प्रश्न मुझे आज तक नहीं मिला। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए कि ये लोग आखिर क्यों काले पट्टी बांध के जो थे संसद के बाहर बैठे थे। तो यही बात यहाँ पर भी आता है। गोर्बाचेव का जो सोच विचार था अच्छा था, वो सोवियत संघ के बहुत ही हितैषी थे और वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अच्छा कई लोग को रास नहीं आई और उन्होंने जो है अमेरिका से गठजोड़ कर लिया और इसी कारण जो है सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ। लेकिन देखा जाए तो गोर्बाचेव ने क्या सुधार किया और गोर्बाचेव सुधार में क्या भूमिका थी और सुधार क्या था, तो इसी के विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसलिए मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, जब तक बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक जो है वो आंसर नहीं दे सकते। आप प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हो, पढ़े मारते हो, समझ में भी आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बदल जाता है और आंसर उसका वही होता है, लेकिन आप कर नहीं पाते। कारण क्या है? आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं है। तो यहाँ साफ शब्दों में है कि सोवियत प्रणाली में सुधार के लिए गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी और इस सुधार का क्या प्रभाव पड़ा पूरे सोवियत प्रणाली पर। तो समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलिए गोर्बाचेव के बारे में जान जाए कि आखिर मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, आखिर वो कौन थे और क्या सुधार वो करना चाहते थे। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जनरल सेक्रेटरी थे, यानी सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर पार्टी थी, उनका वो महासचिव थे, मुख्य थे। उन्होंने सोवियत प्रणाली में सुधार की शुरुआत किया, यानी इन्होंने जो है सोवियत प्रणाली में सुधार का शुभ आरंभ किया और पश्चिम के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश किया। देखिए, राजनीतिक नेताओं का यही होता है कि वो देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, ठीक है। और सोवियत संघ प्रणाली सुधारों की शुरुआत इन्होंने किया। सबसे पहले पश्चिम देशों के साथ जो है सामान्य संबंध बनाने की उन्होंने बेशक कोशिश किया और उन्होंने सोवियत संघ के लोकतांत्रिक बनाने और सुधार करने की भी कोशिश की। देखिए, देशों को लोकतांत्रिक बनाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों का राज। और देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचेव का विचारधारा भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो
अपने सोवियत संघ को जो है लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे, जहाँ लोगों का राज हो, और ये सुधार करने की उनकी बहुत कोशिश थी। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो आप समझ गए होंगे कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। आप ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि मिखाइल गोर्बाचोव थे कौन, तो आपको याद रहना चाहिए कि मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, और इन्होंने कई सुधार किए, कई सुधार करने की कोशिश किया। मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधार कुछ इस प्रकार है, जो हम यहाँ पर लिए। हमने महत्वपूर्ण बातों को ही यहाँ पर जगह दिया है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसको नोट भी कीजिए और ध्यान से समझिए भी, तभी आपको समझ में आएगा। कहते हैं ऊपर ऊपर समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी त्रिपाण स्टडी सदैव कहता है कि जब भी त्रिपाण स्टडी सेंटर की वीडियो देखिए तो एकांत में देखिए, शांत मन से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें समझ बहुत है, सिर्फ समझने वाले बच्चों की कमी है। अब यहाँ पर गोर्बाचोव द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधार कुछ इस प्रकार था। पहला था उन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन और ग्लानोस्ट यानी खुलापन जो है आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीति पेश की। यानी देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे, सबसे पहला सुधार तो ये करना चाहते थे कि पुनर्गठन, सभी राज्यों का पुनर्गठन करने की विश्वास रखते थे और खुलापन रखना चाहते थे। अपने जैसे भारत भी आज अपने यानी खुलापन की भावना रखी हुई है, तभी पूरे देश को जो है आमंत्रित कर रही है भारत में व्यापार करने के लिए और भारत में जो है फैक्ट्री लगाने के लिए। तो गोर्बाचोव ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश किया कि देश को पुनर्गठन किया गया, कि सभी देशों को राज्यों को मिलाएं और सबको पुनर्गठन करें, और खुलापन की नीतियों को उन्होंने जो है अनुसरण किया। और आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीति भी पेश की कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार होनी चाहिए, ये इनका प्रमुख सुधार था। उसके बाद उन्होंने परमाणु हथियार पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षर करके अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ को रोक दिया। ये उनकी बहुत अच्छी पहल थी, क्योंकि आपको पता था कि जब शीतकाल चल रही थी, शीत युद्ध चल रही थी, तो उस समय हथियारों की एक होड़ सी लग गई थी। कहते हैं अमेरिका, सोवियत संघ, यूएसएसआर हथियारों को इतनी तरह से जो है बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं बता दूं आपको कि जब जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ, तो उसकी खात्मा जो थी एक बहुत ही विनाशकारी घटना के साथ हुई थी। शायद आपको पता होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो है अमेरिका ने परमाणु बम गिरा के पूरे दुनिया को जो है हिला के रख दिया। और यही मिखाइल गोर्बाचोव नहीं चाहते थे कि अमेरिका फिर से कोई ऐसा गलती करे और उस क्षेत्र में जो है जनजीवन की जो इतनी हानि पहुँचे। इसलिए उन्होंने अच्छे कामों के रूप में सबसे पहले उन्होंने इसी बात का अनुसरण किया कि उन्होंने परमाणु हथियारों को नियंत्रण के लिए अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए, और जो हथियारों की होड़ मची हुई थी उस पर रोक लगाने की कोशिश किया। आज भारत भी इसका वकालत करता है कि बड़े बड़े हथियार, परमाणु हथियारों पर नियंत्रित होना चाहिए और इसकी होड़ जो है वो कम ना चाहिए। नहीं तो कहीं अगर ऐसा ना हो कि हम अपने ही आवेश में पूरे जनजीवन को ही तहस नहस कर दें। और इसका आज भी होड़ बनी हुई है। अमेरिका सदैव ही इन हथियारों का जो है घर रहा है। उसके पश्चात है उसने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में सोवियत सेना हटा ली। देखिए ये गोर्बाचोव का बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था कि जो अफगानिस्तान में सेना लगाई गई थी गोर्बाचोव से पहले, और पूर्वी यूरोप में गोर्बाचोव ने उनको स्वतंत्र कर दिया, उनको जो है पूरी तरह से जो छोड़ दिया, वहाँ की सारी सेनाओं को हटा लिया, जिससे वहाँ के जनजीवन सामान्य हो सके। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था। उन्होंने जर्मनी को एकीकरण में भी सहायता किया। जब जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो गोर्बाचोव के कारण ही हो रहा था, और गोर्बाचोव ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया, और ये काफ़ी उनका महत्वपूर्ण कार्य था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधार का जो है यूएसएसआर पर क्या प्रभाव पड़े। देखिए सुधार तो आपने समझा जाना, बहुत ही अच्छे सुधार किया गया जो कि होना चाहिए। जग कल्याण के लिए ऐसे सुधार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सुधार सब लोगों को रास नहीं आई, तो इसका प्रभाव भी पड़ा, अवश्य पड़ा। कहते हैं पहला प्रभाव तो इस सुधार का यही पड़ा कि आम लोग पेरेस्ट्रोइका ग्लानोस्ट की नीति में जो है निर्धारण की तुलना में व्यवस्था में खुलापन और पुनर्गठन लाने के लिए अधीर हो गए। यानी उनमें बहुत जल्दबाजी हो गई
कि जल्द से जल्द जो है खुलापन और पुनर्गठन होना चाहिए। कहते हैं, एक बात तो आपने कहावत सुना ही होगा कि जो जल्दबाजी होती है शैतान का काम होता है। तो वहाँ के लोगों ने यही किया कि नीतियों के निर्धारण की तुलना में व्यवस्था में खुलापन और पुनर्गठन लाने के लिए अधीर हो गए, यानी उन्होंने जल्दबाजी कर दी। कोई काम जल्दबाजी से नहीं होता है। जब तक हम उसको सही से समझे ना, सोचे नहीं, विचार ना करें, तब तक जल्दबाजी से लिया हुआ गया फैसला सदैव ही खतरनाक होता है। और ऐसा ही हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव ने तो बहुत ही अच्छी बात वहाँ पर कही कि खुलापन और पुनर्गठन की जो है वकालत की, लेकिन लोग अधीर हो गए कि ये सुधार जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कोई चीज़ करने का एक सही समय होता है, एक सही अवसर होता है। आपने भी देखा होगा कि भारत सरकार ने किसान के लिए जो है बहुत सुधार करने की कोशिश किया, लेकिन वो उस समय किया जब उनके फेवर में जो था राजनीति नहीं थी। तभी जो है किसान आंदोलन हुई और सरकार को जो है सारे रूल रेगुलेशन को वापस लेना पड़ गया। क्योंकि कोई भी सुधार होती है उसके लिए समय और हालातों को देखना पड़ता है, तब जाके सुधार करना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो लोगों को रास नहीं आती है। और आपको पता ही है कि पार्टियों में ये दौड़ हमेशा लगी रहती है। एक व्यक्ति सही कर रहा होता है, दूसरा व्यक्ति उसको गलत साबित कर रहा होता है। और ये हमेशा ही राजनीति में ऐसा ही हुआ है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी की तारीफ़ कर रहा हो और उसे कामों का तारीफ़ करके दिखा रहा हो। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। सभी पार्टी एक दूसरे को जो है नीचा ही दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और खामियां निकालते ही रहते हैं। और कोई अच्छा करता है तो कहता है ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो हम भी कर सकते थे, लेकिन वो भी रह के भी नहीं कर सके। तो यही बात यहाँ पर भी थी कि आम लोगों में खुलापन पुनर्गठन की जो होड़ थी वो अधीर हो गए इसके लिए। अगला बात है नौकरशाह और कम्युनिस्ट कट्टरपंथी ने इस नीतियों में अपनाना नहीं चाहते थे, यानी खुलेपन पुनर्गठन। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ लोग जो थे कुछ अच्छे रूल को मानना नहीं चाहते थे, और यहाँ ऐसा ही हुआ। उनके कम्युनिस्ट पार्टी के ही, क्योंकि गोर्बाचोव भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे, लेकिन उसमें भी कट्टरपंथी भी थे, ठीक है। और नौकरशाह के लोग जो थे और कम्युनिस्ट पार्टी इन नीतियों को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि इससे उनकी शक्ति और विलासिताएँ कम हो जाएगी, यानी वो विलासिताओं से भरे पड़े थे। आपको पता ही है ना, कोई भी राजनीतिक नेता जो है अपनी सत्ता नहीं गंवाना चाहते हैं। कारण यही है कि जो उनको विलासिता मिली होती है, जो सुख सुविधा मिली होती है, जो सुख शक्तियाँ मिली होती है, वो आम व्यक्ति बन के नहीं मिल सकती। इसलिए वो दाम दंड भेद जो भी होता लगता है वो सभी करते हैं। जैसे आपको पता है भारत में इलेक्शन होने वाली है, और भारत में आपको पता है कि दंगा फसाद का जो है शुभारंभ हो चुकी है। तो कारण यही है को दंगा फसाद करके अपनी सिक्का चलाना चाहते हैं। जो सरकार होगी वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। इससे सरकार के लोगों के सामने वो हीरो बन जाएगी कि भाई सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। और दूसरा सरकार ये होगा कि उसको सरकार गिराने के लिए तरह तरह के हड़कंडे अपनाएगी। लेकिन एक बात ये लोग नहीं जानते हैं राजनीतिक में कि जो ये हड़कंडे अपना रहे हैं सांप्रदायिक दंगे फसादों का, उसमें आम गरीबों की बहुत हानि होती है और हमारे देश की संपत्ति की बहुत नुकसान होता है। और मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिस राजनीतिक नेता का जो है दंगे फसाद में थोड़ा भी नाम आ जाए, उसका सारे ज़मीन जायदाद संपत्ति जो है कब्जा में ले लेना चाहिए और इसको जो है उस नुकसान की भरपाई करना चाहिए। और इवन कि जो लोग इस दंगा फसाद में सम्मिलित हुए हैं उनका जो है ऐसा सज़ा देना चाहिए जो उनको कभी भी जीवन में दोबारा जो है दंगे फसाद में जाने की उनकी हिम्मत ना हो। क्योंकि उनको शायद इस बात का समझ नहीं है, वो 500 रुपया 1000 रुपये के चक्कर में अपने ही देश को बर्बाद कर रहे होते हैं, अपने ही भाई बहन को जो है मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और एक राजनीतिक नेता के कहने पे ये सही नहीं है दोस्तों। हम मानव है, हम इंसान हैं, इंसान इंसान के लिए मरता है, उसको मारता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर भी था कि नौकरशाही और कम्युनिस्ट कट्टरपंथी इन नीतियों को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि जो उनका शक्ति है और ऐसा आराम है, विलासिता सब कम हो जाएंगे, जो भोग विलास में पड़े हुए हैं ऐसा करने से उनका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो है गोर्बाचोव को इन्होंने समर्थन नहीं किया।
इसका परिणाम गलबाचों को भुगतना पड़ा, क्योंकि उनके ही लोगों ने उनको साथ नहीं दिया, इसलिए गुलबच्चों को जो है ये भुगतना पड़ा। बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब क्या करें, जब अच्छा काम लोगों को रास नहीं आ रही थी, तो ऐसे समाज में, ऐसे देश में रह के क्या फ़ायदा, किसी पोस्ट पे रह के क्या फ़ायदा। इसलिए गुलबच्चों ने बहुत ही दुर्दशा की यहाँ पर बात कर दिखाई, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। और 1991 में तख्ता पलट हुआ, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी थे, तो दूसरी तरफ जो है पुण्य गठन के कट्टर समर्थक थे। यानी देखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में यहाँ बट गई। जैसे ही मिखाइल गोर्बेचोव ने अपनी इस्तीफा दिया, और वैसे ही ये कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बट गई। जैसे भारत में भी हुआ था, आपको पता है कांग्रेस पार्टी एक थी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत किया तो बहुत वहाँ पर जो है बीजेपी का उदय हो गया। तो ऐसे ही कहते हैं, जब कुछ गलत होता है या कुछ अपना नहीं बन पाता है, तो लोग जो है अपना अलग ही पार्टी बना लेती हैं। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई, एक कट्टरपंथी में हो गई और एक जो थे पुण्य गठन के कट्टर समर्थक थे। तो ये सब उनकी विलासिताओं के कारण ही हुआ। कहते हैं राजनीतिक नेता सदैव ही विलासिताओं में ही लिप्त रहना चाहते हैं, इसलिए वह अपना जो है सिक्का सदैव बनाए रखना चाहते हैं। गलबाचोव सुधार नीति रूस और ब्लास्टिक्स गणराज्य सहित विभिन्न गणराज्यों के भीतर राष्ट्रवाद भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा को बढ़ावा दिया। और आपको पता है गलबाचोव सुधार नीतियों के कारण जो था, रूस और ब्लास्टिक्स गणराज्यों में सहित विभिन्न गणराज्यों के भीतर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जो है काफ़ी बढ़ा दिया, और ये काफ़ी बहुत बड़ा प्रभाव था। लोगों ने केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की तुलना में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी, जिनके तहत वो पीड़ित थे। यानी देखा जाए तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो समाजवादी से काफ़ी पीड़ित हो चुके थे। वहाँ के लोग जो थे समाजवादी से पीड़ित थे, यानी यूएसएसआर जो थे वहाँ के लोग समाजवादी से जो विचारधारा थी उससे बहुत काफ़ी पीड़ित हो चुके थे। इसलिए उन्होंने जैसे ही जो गोर्बेचोव सुधार खत्म हुआ, उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है प्राथमिकता देने लग गए। जिसके कारण जो है सोवियत संघ बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई, यानी डेड हो गया। तो ये प्राथमिकता के कारण जो थे खत्म हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देयर इज अ व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एंड असेस द फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। नो दैट what was the Soviet system and assess feature of the Soviet system. First of all, what is the Soviet system? According to here, the Soviet system was based on the critiques of capitalism, which declares that a capitalism unavoiding and the leads a never ending improvement and exploitations of the masses. This is important. The Soviet system was based on the critiques and capitalism, which is declares that capitalism and unavoidings lead to the never-ending imperialism and exploitations of masses. It is stressed that capitalism can never be the equate itself with the mass production for the satisfaction of human needs. This is important for the Soviet system here. The Soviet system was a largely pro-poor in orientation with the social policy and aim at the welfare of the masses. This is important. There is a welfare of the masses. The Soviet system is constituted after the Russian Revolution of 1917. This is important. The Soviet system was constituted after the Russian Revolution of 1917 and the based on equality and plan to economics. This is important. There is a base on equality and plan of economics. And some feature of Soviet system are following. This is important. The some feature of Soviet system here. First of all here, in the Soviet system, the state was accorded an important role. In the Soviet system, the state was accorded an important role. The state was the savior of the masses. And second here, the Soviet system was an outcome of the socialist and doctrine here, which is the seek the create an egalitarian society.
This is important. But third point is also is the most important here. The Soviet system as economics was planned and controlled by the state. This is important here. The Soviet system as economics was planned and controlled by the state. And there were no private enterprises or industries. There were no private enterprise and industries. This is important. The next point here, the Soviet political system gave up premises to be a communist party with the no scope for the opposition in a politics. Or it was a sign of the authoritarianism. This is most important here. The premises to be a communist party with a no scope for the opposition party in their politics. This is the most important four features of Soviet system here. यदि हम यहाँ पर बात करें 6वें क्वेश्चन की तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और आपको पूरे किताब याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ किताबी क्वेश्चन जो है याद कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और करने की आवश्यकता है, लेकिन तब होगा जब आप पूरे कंप्लीट करोगे क्वेश्चन। हमारे समक्ष सिर्फ 8th क्वेश्चन होंगे, यानी हमने दूसरे चैप्टर के सिर्फ 8th क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं और ये सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक समझना और ज़रूरी है। उसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो है 6वां आया है, सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का मूल्यांकन करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली क्या थी आखिरकार। सोवियत व्यवस्था पूंजीवादी की आलोचना पर आधारित थी, यानी सोवियत व्यवस्था में आपने देखा ही होगा कि काफ़ी समय तक जो है कोल्ड वॉर चली और कोल्ड वॉर का मतलब था कि एक दूसरे को आलोचना करना, यानी साम्यवादी व्यवस्था जो थी, सोवियत प्रणाली जो थी वो पूंजीवादी प्रणाली को आलोचना करती थी सिर्फ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी सोवियत व्यवस्था पूंजीवादी की आलोचना पर आधारित थी, जो घोषित करती थी कि पूंजीवादी जनता को कभी न ख़त्म होने वाली दरिद्रता और शोषण की ओर ले जाता है। जर्नल सी बात है, कोई रूल रेगुलेशन किसी के लिए होता है तो वो अपने ही रूल रेगुलेशन को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। और उल्टी बात ये थी कि पूंजीवादी जो थे साम्यवादी को गलत ठहरा रहे थे, यानी वो एक दूसरे को आलोचना कर रहे थे। कोल्ड वॉर का आपको मतलब बताया था मैंने कि यहाँ पर विचारों का युद्ध है, यहाँ पर हथियारों का युद्ध नहीं है, विचारों का युद्ध है, मीडिया का युद्ध है, यहाँ सोचों का युद्ध है और यहाँ एक दूसरे का आलोचना का युद्ध है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया है कि सोवियत व्यवस्था जो थी पूंजीवादी की आलोचना किया करते थे और वो कहते थे कि पूंजीवादी के कारण जनता को कभी न कभी ख़त्म होने वाली दरिद्रता और शोषण की ओर ले जाएगी, यानी दरिद्रता आ जाएगी, बिल्कुल ही देश ख़त्म हो जाएगा। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पूंजीवादी कभी भी जो है मानवीय जरूरतों की संतुष्टि के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के बराबर नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है सोवियत प्रणाली का, कि सोवियत प्रणाली जो थी पूंजीवादी प्रणाली को सदैव आलोचना करती थी और साफ शब्दों में कहती थी कि पूंजीवादी के कारण दरिद्रता और जो है शोषण की दौड़ चलती रहेगी और इससे जो है मानव की ज़रूरतों कोई भी पूरी नहीं होगी और मानव कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जबकि पूंजीवादी उसी के विपरीत इनको बोलते थे। तो ये संघर्ष आपस में चलता रहता था। जनता के कल्याण के उद्देश्य से सामाजिक नीतियों के साथ सोवियत प्रणाली काफ़ी हद तक गरीबों के पक्ष में थी, यानी देखा जाए तो जनता के कल्याण के उद्देश्य से जो सामाजिक और नीतियों के साथ सोवियत प्रणाली जो थी वो गरीबों के पक्ष में थी। और 1917 के रूस क्रांति के बाद सामान्यतः और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन भी किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखिए, पूंजीवादी जो थी पैसों पर आधारित थी, लेकिन जो साम्यवादी थी, साम्यवादी जनता के कल्याण के लिए बनाई गई थी और हर बात जो है जनता के कल्याण के लिए ही सोचती थी। इसलिए इसका मत जो था बेहतर था और ये सोचते थे कि हम जो है काफ़ी हद तक जनता के सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है, आज कहते हैं कि पूंजी का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान आ जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है आज सभी अपना रखे हैं। इवन कि भारत भी जो है आज दोनों अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, साम्यवादी और पूंजीवादी, क्योंकि इसी दो राहों पर हर एक देश चल रहा है।
इवन कि चाइना भी जो है वही रूल रेगुलेशन अपना रखा है, सारे देश यही रूल रेगुलेशन अपना रहे हैं कि जनता की भी भलाई होना चाहिए और देश की जो है पूंजी भी बढ़ना चाहिए। और देखा जाए तो आप दोनों बात को भली भांति समझ गए होंगे कि जनरल सी बात है, जो साम्यवादी थी उसका नीति था कि आम गरीबों की हक की बात करते थे, और पूंजीवादी जो थे हमेशा पैसों और पूंजियों को ही प्रायोरिटी देते थे। 1917 की रूसी क्रांति के बाद समानता और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन किया गया था। और आपको बता दूं साफ शब्दों में कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद समानता और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि 1917 में सोवियत प्रणाली का जो है गठन हुआ था। और आप यहाँ पर समझ गए होंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली जो है पूंजीवादी प्रणाली को जो है आलोचना करती थी और साफ शब्दों में कहती थी कि इससे जो है आने वाला समय में जनता जो होगा दरिद्रता और शोषण के और ले जाएगा। और साथ में उन्होंने ये बात भी बोला कि इससे जो है आम मानवीय जीवन की जो है संतुष्टि कभी पूरी नहीं होगी, कभी जो है उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं होगा। और जो है आपका सोवियत प्रणाली की एक ही विशेषता थी कि वो गरीबों को हक में बात करते थे और उनके उद्देश्य को ही आगे रख के आगे अपने बढ़ते थे। और इसका गठन जो हुआ था सोवियत प्रणाली की देखा जाए तो 1917 में हुई थी रूस की क्रांति के बाद। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें। अब हमारे समक्ष जो आया है सोवियत प्रणाली की विशेषता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए सोवियत व्यवस्था में राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के अंतर्गत राज्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी और राज्य जनता का रक्षक था, ये बात घोषित की गई थी। यानी यहाँ पर जनता की भलाई के लिए जो बनाई गई जो रूल रेगुलेशन था सोवियत व्यवस्था का, वही यहाँ पे खूबी देखने को मिला कि इनकी मुख्य भूमिका दी गई थी कि राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी और राज्य का जनता का रक्षक करना उनकी प्राथमिक जो है उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात थी कि सोवियत प्रणाली समाजवादी सिद्धांत का परिणाम था। यानी जो है सोवियत प्रणाली समाजवादी विचारधारा का परिणाम था, जो समानतावाद समाज बनाना चाहता था। यानी समानतावाद समाज, यानी सभी व्यक्ति को जो है सम्मान बराबर मिले और सबको जो है जीवन जीने का अधिकार हो। अच्छी प्रणाली थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और भारत भी इसको अपना रखा है। सोवियत प्रणाली की व्यवस्था की योजना और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाना था और कोई निजी उद्यम या उद्योग नहीं थे। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाया गया है कि सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था की योजना और नियंत्रण राज्य द्वारा की जाती है। राज्य जो थे वो सारे अर्थव्यवस्था को योजन करते थे, बनाते थे और उस पर नियंत्रण लगाया करते थे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें कोई निजी उद्यम और उद्योग नहीं थे, यानी सारे के सारे गवर्नमेंटल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है सोवियत प्रणाली को। अगर हम चौथे और आखिरी पॉइंट पे यहाँ पर प्रकाश डालें तो ये साफ शब्दों में है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता थी। जनरल सी बात है, आपको पता ही होगा कि सोवियत प्रणाली में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। बेशकली आगे चल के ये पार्टी जो है दो भागों में बट गई थी। एक जो था कट्टरपंथी थी, दूसरी जो थी साम्यवादी रूल रेगुलेशन को लेकर चलती थी। तो ये बात और भी महत्व बना देता है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता थी और राजनीतिक विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं था। यानी यहाँ पर विपक्ष कोई भी नहीं था। ठीक है, जैसे आपको पता है भारत में भी कुछ दौर तक चलता ऐसे ही रहा कि भारत में जब 1884 में जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ तो उसके समक्ष कोई भी पार्टी नहीं थी। बाद में आके बहुत से पार्टी उन्हीं में से पार्टियों में से बन गई क्योंकि उनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं थी। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी भी वहाँ पर दबदबा थी। बाद में जाके बहुत से पार्टियों का उदय हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई और यहाँ पर जो है कोई विपक्ष पार्टी नहीं थी उस समय। और यह अधिनायकवाद का प्रतीक था कि यही जो है कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है एक नायक की तरह यहाँ पर कार्य कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बात आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी विशेषता क्या थी। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश किया और जाना है एक पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, सेवंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन हियर, व्हाट वेयर द फैक्टर दैट अ फोर्स इज गोरबाचेव टू बी initiated reform in the USSR? What is the factor? There is the force the Gorbachev to the initial reform in the USSR is the most important. I have discussed preview question there reform, but here factor.
What were the factors that forced the Gorbachev study reform in the USSR? It's the most important question for here. The factor that forced Gorbachev to initially reform in the Soviet Union were, first of all, here, the most important factor was to keep the USSR well aware the revolution taking place in the field of information and technology in the West. And Gorbachev was well aware of the standard of technology in a USSR. This is the most important factor. There is a reasons for the reforms here. The most important factor was to keep their USSR well aware of the revolution and taking place in the field of information and technology in the West. And Gorbachev was the well aware of the standard of technology in the USSR. This is important. And the second here, Gorbachev want to be make USSR an advanced country. This is the most important point here. There is USSR, Gorbachev want to be make USSR an advanced country which could be catch up with or outpace to the Western country, or particularly the USA. It was a step for a democracy. This is the most important point. Second here. And the next point is also important here. Third, Gorbachev was a liberal in his the outlook. Gorbachev was a liberal in his outlook. He favored to the normalization of ties of the USSR with the rest of the world. And among his top priorities was to be a forget better relation with the Western country. This is the most important here factor. There is a Gorbachev was a liberal, his outlook, and here a favor to normalization. And here top priority was the for better relation with the Western countries. And the next year, Gorbachev faced the administrative stagnations in the Soviet system. Reason being a lack of democracy coupled with the mounting corruption. The corruption is the most factor affecting for there is a reform here. Gorbachev faced administrative stagnations with the Soviet system. The lack of democracy, there is a couple with the mounting corruption. And the next year, fifth point here, Gorbachev has drive his motivation for reform in the need to be address the legacy of economics, social and political stagnations, and which took a step in the regimes to the Brezhnev, and they marked the economical decline of the declared 1976 to 1985, and this time challenged the military and political supremacy of the USSR. This is the most important point here. The economical, social, political stagnations which took shape in the regime of Brezhnev, the marked the economical decline. It's a time here 1976 to 85. And this was a challenge in their military and political supremacy of USSR. And the last point, sixth year, a foreign policy complication added by the Soviet Unions, and one there is Afghanistan in 1979, and complete Gorbachev to be disintegrate the Soviet command and so economy. There are uses in the era of economical prosperity. This is the most important point here. Foreign policy a complication added by the Soviet Union as involved there Afghanistan in 1979. This is also important. यदि आगे हम सेवंथ क्वेश्चन पे बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है. पिछले क्वेश्चन में हमने जो है सुधारों के बारे में पढ़ा था. जो पांचवा क्वेश्चन था उसमें था गोल्बाचोव क्या सुधार किए थे, लेकिन ये सुधार करने के कारण क्या था, आखिर वो कौन कौन सी बात थी जिसके कारण गोल्बाचोव को जो है विवश कर दिया सुधार करने के लिए. तो इसी बात पे हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे. कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है
आंसर आपको पता ही होता है। तो यहाँ पर यही बात है, कौन से कारक थे जिन्होंने गोल्बाचोव को जो है यूएसएसआर में सुधार शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने सुधार के बारे में पहले पढ़ा था, लेकिन कारक के बारे में नहीं पढ़ा था कि वो कौन कौन से फैक्टर थे। तो यही क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण, दोनों क्वेश्चन को आप एक जैसा मत समझना कि दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात बताई गई है। तो यहाँ पर हम कारक जानेंगे, कारण जानेंगे। गोल्बाचोव को सोवियत संघ में सुधार शुरू करने के लिए मजबूर करने वाले कुछ कारक थे, और कौन कौन से कारण थे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक था यूएसएसआर को पश्चिम में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रही क्रांति से। क्योंकि जर्नल सी बात आपने देखा होगा कि किसी भी देश में कुछ अलग होता है तो हमारे देश में भी आवाज़ उठने लग जाती है। वैसा ही उस समय वहाँ पर भी हुआ कि दूसरे जो है पश्चिम देशों में जो सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रही क्रांति से अच्छी तरह से अवगत कराना था। कि जो क्रांति वहाँ पर हुई थी वो गोल्बाचोव ये नहीं समझते थे कि वो ये हमारे देश अवगत न हो, वो अपने देश को भी अवगत कराना चाहते थे। और गोल्बाचोव ने यूएसएसआर में प्रौद्योगिकी के मानक से अच्छी तरह परिचित थे और उनको प्रौद्योगिकी का मतलब समझ था। फिर भी उन्होंने जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर करने की बहुत बड़ी कोशिश किया। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कारण था सुधार करने की। क्योंकि आपने देखा होगा इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि अगर मान लीजिए कोई पड़ोसी आपके कुछ लेके आता है ना, तो आपके घर के लोग भी जिद करने लग जाते हैं कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो वही हुआ वहाँ पर भी कि जब दूसरे देशों में सूचना औद्योगिक काफ़ी तरक्की कर रहे थे, अच्छी क्रांति हो गई थी, तो उनके देश में अगर ना होता फिर भी लोग आलोचना करते। इसलिए लाना, अवगत करवाना गोल्बाचोव का प्रमुख कारक बन गया। गोल्बाचोव यूएसएसआर को एक उन्नत देश बनाना चाहते थे। ये उनकी बहुत बड़ी कल्पना थी कि वो चाहते थे कि यूएसएसआर को एक उन्नत देश बने और हर देश जो है इसकी पावर को समझे, जो पश्चिम देश में विशेषकर अमेरिका के बराबर या उनसे आगे निकल सके। आपको पता ही है कि अमेरिका और सोवियत संघ में जो है एक कोल्ड वॉर चली और वो अमेरिका से आगे बढ़ना चाहते थे और उसके लिए देश में उन्नत करना चाहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी, लेकिन यह लोकतंत्र की दिशा में एक कदम था। लेकिन कहते ये सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब कोई भी देश के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं या देश के जो चालक होते हैं, इसी बात को प्रायोरिटी देते हैं कि उनके देश जो है अच्छे से अच्छे प्रगति करे और हर क्षेत्र में कामयाब हो। तो यही उद्देश्य गोल्बाचोव को भी था कि वो अमेरिका से बराबर या उससे आगे निकलना चाहते थे और उन्नत देश अपने देश को बनाना चाहते थे। और इस दिशा में लोकतंत्रीकरण करना एक कदम था कि उन्होंने सबसे पहले जो है लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक उन्होंने कदम उठाया था अपने देश के लिए, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। गोल्बाचोव अपने दृष्टिकोण में उदारवादी नीति अपनाते थे। यानी ये गोल्बाचोव जो थे दृष्टिकोण उनके जो थे उदारवादी थे। वो हमेशा उदारवादी को ही मानते थे। उन्होंने शेष विश्व के साथ यूएसएसआर के संबंध को सामान्य बनाने का समर्थन किया। उनका विचार था कि हर एक देश के साथ इनका सामान्य जो है संबंध होना चाहिए, किसी तरह की कठोरता नहीं होनी चाहिए। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में पश्चिम देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना था। और देखिए हर एक जो है मंत्रियों का, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक देश के मंत्रियों का यही सबसे महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य कि दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध जो है अच्छा रहे और कभी जो है युद्ध की स्थिति पैदा न हो। तो इनका विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये अच्छाई भी जो है बहुत भारी पड़ जाता है। कहते हैं आगे अगर पॉइंट की हम बात करें चौथा, तो बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ लोकतंत्र की कमी के कारण गोल्बाचोव के सोवियत प्रणाली में प्रशासनिक ठहराव का सामना करना पड़ा। ये देखिए हर देश का एक सबसे बड़ा कलंक होता है भ्रष्टाचार। कहते हैं कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जाए। और आपको पता है अमेरिका में सबसे पहली बात इसी पे ही कदम उठाया गया था। अमेरिका में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है या न के बराबर है। लेकिन आज अपने देश में ही देख लीजिए, कोई भी काम करवाने के लिए जाइए, भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है। दोस्तों इसका एक उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ। मान लीजिए आज फाइनेंस कंपनी भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार वो ये कर रही है अप्रत्यक्ष तौर पे कि वो क्या करती है, लोगों को फंसाती है।
एक तो इतनी मोटी, जब आप कोई गाड़ी उड़ी खरीदने जाओ तो एक बुकलेट पकड़ा देती है आपको साइन करने के लिए, और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है कि बाद में उनके फेवर में ही सारी बात आए। ठीक है, वो ऐसी सी बात। अब देखिए, कोई व्यक्ति कहते हैं 50 पेज का जो है बुकलेट इतना आसानी से पढ़ नहीं सकता, तो वो क्या होते हैं, जब भी कोई गाड़ी लेने जाओ फटाफट आपको उंगली दिखाएंगे, यहाँ साइन करना है, यहाँ साइन करना है, और फटाफट आप साइन करने लग जाते हो और आप पढ़ते भी नहीं हो। क्योंकि अब क्या पढ़ोगे, कंपनी क्या धोखा देगी, गाड़ी आएगा, गाड़ी हम नहीं किस्त देंगे, वो गाड़ी लेके चला जाएगा, इतना ही होगा। लेकिन बात तब यहाँ से शुरू होती है जब कंपनी गाड़ी लेके चली जाती है, और चले जाने के बाद आपने जो साइन किया था, आपने जो नहीं पढ़ा था, उसमें से एक पेज उठा के आप पे दबाव डालते हैं कि आप एनओसी लीजिए, और एनओसी की वो कीमत लगाते हैं 1 लाख 1.5 लाख, न जाने कितने कीमत होती हैं। और जो व्यक्ति फंस जाते हैं उनके चालों में, वो बेचारे कंगाल हो जाते हैं। तो सोच लीजिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। आज फाइनेंस हर क्षेत्र में हो रहा है। आज आप छोटे से टीवी से लेकर आप मोबाइल खरीदो या गाड़ी खरीदो, सब में आप फाइनेंस करवाते हो। तो कभी आपने इस बात पे सोचा है कि कंपनी आपके साथ धोखा कर सकती है आने वाला समय में? तो दोस्तों, आप समझदार बनिए। भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है, और ये बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार को भारत से रोकना चाहिए, और सरकार को रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। लेकिन सरकार ये सभी बातों को जानती है, समझती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है। तभी भारत जो है, मैं कह रहा हूँ 100 साल क्या, कभी भी जो है प्रगति के राह पे नहीं चल पाएगा जब तक भारत से भ्रष्टाचार नहीं दूर होगा। अब देखिए, एक व्यक्ति जो है गरीब है, वो कड़ी मेहनत करके कुछ किस्तों पर खरीदता है, और वो किस्त ना चुका पाता है 1-2, तो फटाक से कंपनी वाले आते हैं और कुछ भी चक्के लेके चले जाते हैं। और जब समय ख़त्म हो जाता है तो 5-6 साल के बाद उनको याद आती है कि भाई इनको जो है एनओसी देना है, और इनको एनओसी के नाम से जो है अच्छे खासे पैसे रकम लेने हैं। और देखा जाए तो एनओसी जो रूल रेगुलेशन बताता है वो 6 महीने के अंतराल में देना होता है कंपनी को, लेकिन 4 साल के बाद इसका मतलब क्या बना। और एनओसी लेने का प्रावधान सरकार ने बनाया है। आपको पता है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, और इसका मतलब होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमारे समाज में है, और इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मेरे साथ स्वयं ये बात व्यतीत हुआ। कहते हैं ऐसे तो बहुत से लोग थे, और जब मैंने किसी भी व्यक्ति से बात किया तो उन्होंने अपना इसी तरह का जो है स्टोरी अरोना बताया मुझे कि कंपनी मेरे साथ भी ऐसा किया। तो क्या सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती है? अगर कोई बच्चा जो कानून का समझ हो और जिसके घर में कानून की हो बात, वो ज़रूर इस बात को आगे बढ़ाए और भारत सरकार को इस बात से अवगत कराए कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा हमारे देश में है, और जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा हम चांद पे भी पहुंच के कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि चांद पे पहुंचने का मतलब होता है हमें समझदार अच्छे मनुष्य बनना होता है, लेकिन हम तो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि आज हर जगह जो है लूट मार मची हुई है। तो दोस्तों, समझने की बात है, और अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है तो सरकार को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरी है कि ऐसे फाइनेंस कंपनियों को बैन लगाया जाए कि जो 150 पेजों को जो है बुकलेट पे साइन करवाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और बाद में चितवीन का होता है, पटवीन का होता है। व्यक्ति से सामान भी ज़बरदस्ती छीन के लेके चले जाते हैं, पैसे भी आधे से अधिक किस्त ले लेते हैं, और बाद में एनओसी के नाम से वो डराते हैं, धमकाते हैं, और उन पर चार्जशीट लगाने की भी धमकी देते हैं। तो ऐसे कंपनियों पर अगर ब्रेक न लगा तो भ्रष्टाचार हमारे देश से ख़त्म नहीं होगा। और यही बात यहाँ पर भी हुआ कि सोवियत संघ में जो है भ्रष्टाचार जो है लोकतंत्र को ठहरा दिया, और बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ साथ लोकतंत्र की कमी के कारण गोलबच्चों को सोवियत प्रणाली में जो है प्रशासनिक ठहराव का सामना करना पड़ा। क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए, लेव डुबोनों के लिए सबसे जो है बहुत घटिया रूल रेगुलेशन होता है। तो किसी भी देश में अगर भ्रष्टाचार रहा तो जो कहते हैं वो देश कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। गोलबच्चों ने ब्रेज़नेव के शासन में आकार लेने वाली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता की विरासत को संबोधित करने की आवश्यकता में जो है सुधारों के लिए अपनी प्रेरणा प्राप्त की। यानी देखा जाए तो गोलबच्चों ने
ब्रेजनेव के शासन में जो भी कार्य हुआ आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, उससे जो है उन्होंने प्रेरणा प्राप्त किया। उन्होंने 1976 से 1985 के दशक की आर्थिक गिरावट को चिन्हित किया, यानी जो गिरावट आई थी इस समय, उस बात को उन्होंने नोट किया। क्योंकि देखिए, कहते हैं समझदार व्यक्ति वही होते हैं जो गिर के भी संभल जाते हैं। तो इन्होंने जो है ब्रेजनेव के जो आर्थिक सामाजिक स्थिति में जो विरासत संबंधी कुछ प्रॉब्लम आई थी, उससे उन्होंने प्रेरणा लिया और उन्होंने जो 96 और 85 में जो दशक में जो गिरावट आई उसको उन्होंने चिन्हित किया, और जिसने यूएसएसआर की सैन्य और राजनीतिक सुरक्षता की चुनौती दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति वही अच्छा होता है जो समय रहते सुधर जाए, लेकिन जो नहीं सुधरता है उसके लिए कानून है, लेकिन कानून भी आजकल वही है जो वो बनाते हैं। जैसे हमने भ्रष्टाचार के ऊपर बात किया, कहते भ्रष्टाचार कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। एनओसी किसने बनाया? सरकार ने बनाया, सरकार ने मंजूरी दिया। तो क्या सरकार ने इस बात को सोचा नहीं बाद में कि बड़े बड़े कंपनियां जो है इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएगी और देश को जो है आम गरीबों को नोचेगी? तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर सरकार जब तक इन चीज़ों पर ब्रेक न लगाए तब तक ये बड़े बड़े कंपनी आम लोगों को जो है खून चूसती रहेगी। और भारत सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ये बात कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ अगली पॉइंट में अगर हम बात करें जो कि अंतिम है, देखा जाता है 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के कारण विदेश नीति की जटिलताओं को गोलबच्चों को आर्थिक समृद्धि के युग की शुरुआत करने के लिए सोवियत कमांडर अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि मजबूर यहाँ इसलिए हुआ कि 1976 में जो अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के कारण विदेशी नीतियों में जो है बदलना पड़ा और उनको जो है अर्थव्यवस्था जो है मजबूत करने के लिए मजबूत कर दिया। जनरल सी बात है दोस्तों, कहते हैं कोई चीज़ की अगर बुराई हो, अगर हम उसको नहीं सुधारते हैं तो वो आगे चल के जो है बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। और ये बात सरकार नहीं जानती। सरकार को लगता है कि हम जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं सब सही है और सब अच्छा है, लेकिन सरकार ने इस बात पे कभी एनालिसिस नहीं किया कि इससे जो है कुछ व्यक्ति जो हैं गलत फ़ायदा उठा सकती हैं, आम भोले जनता को जो है बेवकूफ़ बना सकती हैं। और आज हो रहा है, हमारे देश में भ्रष्टाचारी बड़े लोग ही होते हैं और बड़े बड़े कंपनियां ही होती हैं। आम गरीब में तो कभी भ्रष्टाचार देखने को मिला ही नहीं मुझे। क्योंकि आम व्यक्ति क्या करेंगे? 2 रोटी चुरा लेंगे किसी से, 1 रोटी छीन लेंगे, 2 रुपया छीन लेंगे। लेकिन बड़े बड़े लोग तो लाख लाख करोड़ों की बात करते हैं। यहाँ तक कि आम गरीब के पास, जिसके पास 1 रोटी कमाने का पैसा ना हो, उनसे 1.5 लाख की जो है मांग कर लेती हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए कि भ्रष्टाचार कौन है? सरकार है कि ये कंपनी है? अगर सरकार सही होती तो कंपनियों पर ब्रेक लगाती और आम गरीबों को साथ देती, लेकिन सरकार सिर्फ भाषण में ही कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका विकास करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बड़े बड़े कंपनियों को जो है जेबी गर्म करना, आम गरीबों से ज़बरदस्ती छीनना। अब सरकार ये भी कहेगी कानून है। अरे भाई, आपने रूल रेगुलेशन बनाया ही क्यों? आम गरीब बंदों के पास रोटी के लिए टाइम नहीं है, कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वो क्या अदालत में चक्कर लगाने जाएं? सब काम धंधा छोड़ कर अदालतों में चक्कर लगाएं, कंपनियों के दरवाजे पर खटखटाएं? ये सही नहीं है दोस्तों। सरकार को इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और हमारे देश से भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर देश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ तो कहते हैं सोवियत यूएसएसआर जो थी, पहले भी बहुत राज्य बहुत देश थे इसमें और सब विघटन हो गई। कहीं भारत का भी कुछ ऐसा न हो। हम दुनिया में जो है अपनी लोहा मनवा चुके हैं, हम चांद पे भी पहुंच चुके हैं। तो कहते हैं क्या भ्रष्टाचार हम ख़त्म करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, अगर सरकार इस पर कदम उठाए तो। द 8th क्वेश्चन हियर, एग्जामिन द इंडियन एज अ रिलेशन विद द फॉर्मर सोवियत यूनियन ड्यूरिंग टू द कोल्ड वॉर। द इंडिया एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन enjoy a cordial relationship during to the Cold War. The relation between the two was multi-dimensional relationship here. First of all, here relation, economical relations during to the Cold Era. India as a public sector and companies were assisted by the Soviet Union. This is the most important point here. Economical relation during to the Cold War era, India as a public sector, companies were assisted by the Soviet Union. And the next point here, it give aid to the technical assistance for the
steel plant like Vilai, Bokaro, Visakhapatnam, as well as a machinery plant like Bharat Heavy Electrical Limited, etc. This is the most important relationship from the Soviet Union during the Cold War. And the next year, third year, apart from this, is the Soviet Union accepted their Indian currency for a trade, and where India was short of foreign exchange. This is the most important relation here. The third point, apart from this, the Soviet Union accepted their India currency for a trade when the India was short and foreign exchange. And the next year, fourth, political relation on the political front, the Soviet Union has supported India in the UN over to the Kashmir issue. This is the most important support here. There is a relation is good. Political relation on the political front, Soviet Union has supported India in the UNA over to Kashmir issue. And the next point here, India got support from the Soviet Union during to the major conflict, especially during the war with the Pakistan in 1971. In this time, the Pakistan supporting by the USA and India supported here a Soviet Union. This is the most important period time here. And the next point here, the Soviet Union on the other hand also got indirectly support from India for its foreign policy. This is the most important point here. And the next point here, the 7th point, defense relation. Defense relation is the most important. Defense relation, India received a military hardware for the Soviet Union when the other countries were building part with the military techniques. This is the most important relation here. The defense relation, the India received its military hardware from the Soviet Union, and when other countries were willing to part with the military techniques here and the technology also. And the next point here, culture in the Soviet Union, Hindi film and Indian culture were very popular. This is the most important support here. Culture in the Soviet Union, Hindi film and Indian culture very popular in this country here. And the next and last point here, this has been proved as a many prominent India writer and artist paid a visit to the USSR. This is the most important relation show in this point here. There is a many prominent Indian writer and artist paid a visit to the USSR. This is the most important relation for the India and USSR here in the Cold War. यदि बात यहाँ पर हम करें जो कि हमारा आठवां क्वेश्चन आया है जो कि अंतिम क्वेश्चन है, और इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन किए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपको पता है त्रिपान सिटी सेंटर ने सिर्फ जो है दूसरे चैप्टर के अंतर्गत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिर्फ जो है 8 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है, और इन्हीं क्वेश्चनों को जो है घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इन क्वेश्चनों को समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। ठीक है, अगर नहीं याद करते तो ये आपके लिए जो है मुसीबत का सबब बन सकता है, तो जितना हो सके इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन साफ शब्दों में अगर हम देखें तो शीत युद्ध के दौरान जो है पूर्व सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध की परीक्षण करिए। अब देखिए सोवियत संघ के बारे में हमने हर बात पे प्रकाश डाला, अब ये भी जानना जरूरी है कि भारत के साथ रिलेशन सोवियत संघ का कैसा था, कैसा यहाँ पर दोस्ताना मूड था कि दुश्मनी का मूड था, तो ये जानना आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अगर हम इसका परीक्षण न करें तो यह अधूरा रहेगा। शीत युद्ध के दौरान भारत और पूर्वी सोवियत संघ के बीच जो है सहायतापूर्ण संबंध थे, दोनों के बीच जो है रिश्ता बहुआयामी रिश्ता था। यानी देखा जाए तो कोल्ड वॉर के समय से ही भारत का रिश्ता जो है सोवियत संघ के साथ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही दोस्ताना है। सदैव जो है आपको सोवियत संघ ने भारत को जो है हमेशा मदद किया है और हर क्षेत्र में जो है साथ दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं आर्थिक संबंध शीतकाल के दौरान ही था, यानी देखा जाए तो आर्थिक संबंध जो था शीतकाल के दौरान ही शुरू हुआ था। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सोवियत संघ द्वारा सहायता प्रदान की गई, यानी सोवियत संघ हमेशा भारत को कुछ न कुछ जो है प्रदान करता ही रहता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं कारण से जो है भारत और सोवियत संघ का रिश्ता जो है बहुत काफ़ी गहरा और मजबूत है। इसने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे इस्पात उद्योग के साथ साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आदि जैसे मशीनरी यंत्रों की सहायता और तकनीकी सहायता दी। यानी ये सबसे बड़ा सहायता है
सोवियत संघ का, इसने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे इस्पात संयंत्र के जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आदि जैसे मशीनरी यंत्रों को जो है सहायता प्रदान की, तकनीकी दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता था यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, जब भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने व्यापार के लिए भारतीय मुद्रा को स्वीकार किया। अब देखिए, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी तो सोवियत संघ ने यहाँ पर नहीं करके जो है इंडियन करेंसी को जो है स्वीकार किया। ये सबसे बड़ा जो है दिल्ली की जो है पहचान है। कहते हैं ये दो देश जो है दोस्ताना सदैव माहौल रखी है भारत के साथ। अब ये सबसे बड़ा बात आती है कि जब विदेशी मुद्रा भारत के पास नहीं था तो सोवियत संघ ने भारतीय मुद्रा को जो है स्वीकार किया। कोई देश ऐसा जो है नहीं बदलाव कर सकता, लेकिन सोवियत संघ ने हमारे देश के लिए किया। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण संबंध यहाँ पर हो सकता है। यहाँ देखिए तो चौथा पॉइंट यही बताता है कि राजनीतिक संबंध, राजनीतिक मोर्चे पर सोवियत संघ ने जो है कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सभी देश जो है कश्मीर मुद्दा पर जो है भारत की सहायता उस समय नहीं कर रहे थे, लेकिन सोवियत संघ ने जब कश्मीरी मुद्दा उठी तो जो है सब समर्थन करने के होड़ में सबसे आगे सोवियत संघ था। कहते हैं सोवियत संघ ने भारत का इसमें समर्थन किया। कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, न कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये साफ शब्दों में उसने जो है इंटरनेशनल के अंतर्गत बताई। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट से, भारत के बड़े संघर्षों के दौरान सोवियत संघ ने समर्थन मिला, खासकर जब 1971 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौर थी। देखिए, कहते हैं बुरे वक्त में जो साथ दे दे वही सबसे बड़ा मित्र होता है। नहीं तो कहते हैं जब बुरे वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो कहते हैं उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत का उस समय समर्थन करने वाला सिर्फ सोवियत संघ ही था। और सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया और जिस कारण से भारत जो है 1971 में पाकिस्तान के जो युद्ध हुई उसमें विजय हासिल किया। तो इससे बड़ा दोस्त कौन होगा जो बुरे वक्त पे साथ दे। तो यही सच्चा मित्रता थी भारत का सोवियत संघ के साथ, जो कि यहाँ जो है सबूत के रूप में दिखने को मिला। दूसरी ओर सोवियत संघ को भी अपनी विदेशी नीति के लिए भारत के अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। जब दूसरी तरफ देखें तो सोवियत संघ को भी भारत ने हमेशा ही साथ दिया है। देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में विदेशी नीति के अंतर्गत भारत ने जो है सोवियत संघ का समर्थन किया और उसको जो है आगे बढ़ाने में हेल्प किया। तो जनरल सी बात है, आप जैसा कीजिएगा वैसा ही आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी को हेल्प करते हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप दूसरे बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए, मैं बोलता ही रहता हूँ। और मान लीजिए आप उनको कोई वीडियो शेयर करते हो तो उनके अंदर भी जो है कुछ विचारधारा आएगी आपके लिए भी कुछ करने की, तो वो भी क्या करेंगे, कुछ अच्छा उनको मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो वो भी आपको सेंड करेंगे। तो इसलिए जो मैं कहता हूं कि जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों को इसलिए कहते हैं कि कभी कभी दोस्त भी सबसे बड़ा हितैषी बनता है। कभी दोस्त हमेशा बुरा ही नहीं होता, दोस्त अच्छा भी होता है। और मान लीजिए आप उनके साथ अच्छा दोस्ताना की तरह व्यवहार करते हो तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तभी तो कहता हूँ कि उनका सहायता कीजिए, क्या पता ये वीडियो उनको अच्छा लगे, उनको समझ में आ जाए और वो जो है समझ जाए तो आपको धन्यवाद ही करेंगे। तो आप सोचिए नहीं, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे देखें। तो कहते हैं रक्षा संबंध भारत को अपना सैन्य हार्डवेयर सोवियत संघ से प्राप्त हुआ है। यानी देखा जाए तो रक्षा संबंधी जितने भी हमें जो है सैन्य हार्डवेयर प्राप्त हुआ है वो सब के सब जो है हमें सोवियत संघ से ही प्राप्त हुआ है। जब अन्य देश सैन्य प्रौद्योगिकी छोड़ने से इच्छुक थे तो सोवियत संघ ने ही हमारा जो है बहुत ही समर्थन किया और हर चीज़ जो है हमें दिया। उसके पश्चात बात करें, संयुक्त सोवियत संघ में हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति बहुत ही लोकप्रिय है। आपको बता दूं कि सोवियत संघ में जो है हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति बहुत ही लोकप्रिय थी उस समय। तो इसे ये पता लगता है कि हमारी संस्कृति, हमसे दोस्ताना जो माहौल थी वो बहुत काफ़ी अच्छी थी और रिश्ता भी बहुत काफ़ी मजबूत था। इसलिए जो है वहाँ के लोग हिंदी फिल्म बहुत देखते थे और भारतीय संस्कृति जो था वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय था। तो ये काफ़ी अच्छे संबंध को यहाँ दर्शाता है। इसमें जो अच्छे संबंध ही झलक के सामने आता है। अगर हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ स्थान रखता है। यह साबित हो गया है कि कई प्रमुख भारतीय लेखक कलाकारों ने यूएसएसआर की दौरा किया है समय समय पे।
तो देखिए ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखा जाए तो बड़े बड़े भारतीय लेखक कलाकारों ने, फिल्म इंडस्ट्री कलाकारों ने सोवियत संघ के दौरा किया है और वहाँ से बहुत से फिल्में भी बनाई गई है। तो ये दोस्ताना माहौल ही के कारण हुआ है। अब देखिए भारत का फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनता है, तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा कुछ ना कुछ जो है खटास अभी भी बाकी है। और पूरे देखिए यूएसएसआर में फिल्में भी बनाई जाती है, फिल्में भी देखी जाती है, हमारे कल्चर भी काफ़ी फेमस है। तो इन सब बातों से ये साबित होता है कि हमारे जो है यूएसएसआर के साथ संबंध बहुत ही मीठापूर्ण है और ये सदैव बना ही रहे, यही मैं हमेशा कल्पना करता हूँ। क्योंकि दोस्ती ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दुश्मनी सबसे गंदी चीज़ें होती है, जिससे सिर्फ देश बर्बाद होता है, घर बर्बाद होता है। इसलिए किसी से दुश्मनी मत कीजिए, कोई दुश्मनी करता है तो हंस के उसको जवाब दीजिए और देश में जो है किसी तरह का जो है दंगे फसाद से दूर रहिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सोवियत संघ ने हमेशा हमेशा मदद हमें किया है, हर एक कदम पे, हर एक मुसीबत पे। तो इससे साबित होता है कि सोवियत संघ के साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने हर एक क्वेश्चन में, हर एक पॉइंट में आपको पॉइंट व्यू से जो है देने की कोशिश किया है और इसका कारण यही है कि जो बच्चे पॉइंट के अंतर्गत कार्य करेंगे उनको फुल मार्क्स आएगा। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम भी जो है अपना एग्ज़ामिनर भी जो है अपना एग्ज़ाम जब चेक करता है तो उसकी भी नज़रिया बदल गई है। अब वहाँ पर जो है बड़े बड़े पैसेज की जगह पर वो लोग जो है पॉइंटों को ही चेक करते हैं और जिन बच्चों ने पॉइंट लिखा होता है वो 2-4 पढ़ते हैं तो समझ में उनको अच्छे से आ जाता है, तो उनको फुल में से फुल मार्क्स दे दिया जाता है। और पैराग्राफ आप लिखते हो तो शायद आपको जो है नंबर आधे से आधे ही मिले, लेकिन अगर आप पॉइंट व्यू पे चलते हो तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपने देखा ही होगा 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन में मैंने सिर्फ पॉइंटों पे ही चर्चा किया है और ये आपको पॉइंटों ही नोट करवाने के लिए कहा है। दोस्तों इस पॉइंटों को जो है अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है, तभी जाके जो है आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पे भी तो ये सेव ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहते हैं लिखने से भी शब्दों का हमें ज्ञान होता है। आपके लिए तिरपान सेंटर हमेशा ही सहायता फुल रहेगा, हेल्पफुल रहता है, हमेशा ही आपके लिए कार्य करता है। तो आपका भी फ़र्ज़ बन जाता है कि आप भी तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करें और हेल्प करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए दोस्तों शेयर करने से 2 बातें साफ़ हो जाती है। एक तो तिरपान स्टडी सेंटर का मदद भी हो जाती है क्योंकि इससे दूसरे बच्चे तक पहुंच भी जाता है वीडियो, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही एम है कि हर वीडियो जो है हर बच्चे तक पहुँचे और उसका लाभ उठा सके। अगर उनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं लगेगा वो इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है आप व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाइए, इससे जो है उन बच्चों तक मिलेगा। जिनको देखना होगा, जिनको समझ में आएगा वो देखेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो इग्नोर कर देंगे। आपने अपना कार्य किया, तिरपान सेंटर ने अपना कार्य किया। कहते हैं अच्छी बातें ग्रहण करना होता है, ठीक है, जो ग्रहण करे वो महान होता है, जो ग्रहण ना करे वो बेकार होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है ये दूसरा चैप्टर भी ख़त्म होता है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे और एक 8 क्वेश्चन लेके या 9 क्वेश्चन लेके। तो आप इसके लिए बने रहना होगा तिरपान स्टडी सेंटर के लिए, और ये तब आपको पता लगेगा कि अगला वीडियो किसकी है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सोचिए नहीं, तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए।